workshop on today's sessions on the visualize your research with the Canva. तो आज जो हम लोग समझने वाले हैं, basically we will discuss today we will discuss the introductions part of the Canva. तो how many know about the Canva? किसी ने यूज किया है कभी, है ना, रिसर्च पर्पज से, या किसी ने कोई यूज किया है किसी और पर्पज से? ये कैनवा आप लोगों ने यूज किया है? यस आई हैव सुमित वेदांत. ओके मैम, ओके. नॉट यूज इट. ओके 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 ओके. तो शुरू करो. Thank you everyone. I have to introduce our resource person. Today our resource person is Mr. Mohammad Rafiq. He is a distinguished figure in AI and education with a rich background in journalism, research and academic leadership, holding advanced degrees from AMU and Jamia Millia Islamia. His media career includes roles at NDTV, ETV, New Delhi, Star Times and Amar Ujala. Transitioning to education and technology, he became director of Bharat Digital Academy in 2021 and earned a certificate in AI from IBM in 2022. A sought after speaker, he has delivered numbers of lectures on AI tools, teaching methods, and ICT. His prolific contributions includes over 25 workshops, 107 articles, and 20 plus online lectures, earning him widespread respect in among academy. Thank you, everyone. Let's start our program. Okay, thank you very much, Dr. Ghaffar. Here. Thank you very much, Dr. Ghaffar, for introducing me about this for this workshop. So now, without a delay, we will start today's workshop on visualize your research with a Canva. First of all, day one. We will discuss here introductions to the Canva and AI in the research. है ना? So we will discuss here the content. We have the content here, the overview of the Canva, interface, tools, and basic functionalities, importance of the visual communication in research introductions, exploring Canva's template for the research-related visual, AI basics and its role in the data visualization, case studies of the successful research project using Canva and AI, how to log in Canva and Canva versions, है ना? So we will discuss here these topic. Okay, how can we use the Canva for the research, है ना? So I think I am audible, no? I think I am audible. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So the just we will understand exactly what is Canva. है ना? बहुत सारे लोग कैनवा के बारे में जानते हैं. कैनवा इज द वेरी फेमस टूल फॉर द डिजाइनिंग, फॉर द ग्राफिक, है ना? तो हम जो कैनवा है, तो बेसिकली हम लोग कैनवा को यूज कैसे कर सकते हैं, हम कैनवा में किस किस चीजों का यूज करते हैं. लेकिन हम कैनवा में डिजाइन ग्राफिक डिजाइन के साथ साथ we can use the Canva for our research यानी academic research. एकेडमिक रिसर्च क्या, बहुत सारे रिसर्च के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस भी कर सकते हैं और हम अपनी रिसर्च को विजुअलाइज कर सकते हैं. चाहे वो ग्राफ जो हमें अपनी रिसर्च में, चाहे कोई फोटो इंसर्ट करना है, कोई ग्राफ इंसर्ट करना है, कोई चार्ट इंसर्ट करना है ना, या क्या कोई भी इंफोग्राफ या पोस्टर इंसर्ट करना है,
या फिर हमें कोई भी प्रेजेंटेशंस तैयार करना है, फ्लायर तैयार करना है, वॉट एवर यू नीड, है ना। तो ये जो कैनवा है, कैनवा को इस तरह से डिजाइन किया गया है, क्रिएट किया गया है कि ये एजुकेशनिस्ट के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जनरल जो लोग डिजाइन नहीं जानते उनके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और जो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्रीज और बिजनेस में है उनके लिए भी कैनवा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो कैनवा बेसिकली, जो कैनवा है बेसिकली काम कैसे करता है ना। तो कैनवा में क्या है ना, बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं, बहुत सारी इमेजेस होती हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स, और जो भी इसमें रेडीमेड इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द कैनवा। लेकिन जो कैनवा में होते हैं सारे जो टेम्पलेट्स वगैरह होते हैं, पोस्टर्स, ग्राफिक्स और होता है, तो उसको हमें क्या करना होता है, हमें उसको कस्टमाइज करना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें होती है कि इसमें जितने भी पिक्चर्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, है ना, जितना भी कंटेंट है, वो कंटेंट कॉपीराइट के दायरे में नहीं आता है, क्योंकि कैनवा ने सारे कंटेंट को अपना एक कॉपीराइट ले रखा है। यानी जब भी हम यूज करते हैं कैनवा के फोटोज को, कैनवा के ग्राफ्स को, कैनवा के जो भी मैटर वॉट एवर द कैनवा है, तो जो भी हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, वो कॉपीराइट के दायरे में नहीं आता है। तो अब ये क्या है कैनवा, है ना। कैनवा इज द ग्राफिक डिजाइन प्लेटफॉर्म दैट्स अलाउ द यूजर टू क्रिएट द वाइड रेंज ऑफ डिजाइन्स इंक्लूडिंग सोशल मीडिया ग्राफिक्स, प्रेजेंटेशन, पोस्टर, फ्लायर एंड मोर। ठीक है, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको, है ना। इसके आगे कैनवा प्रोवाइड द यूजर विद एक्सेस ऑफ द वास्ट लाइब्रेरी ऑफ द टेम्पलेट्स, इमेज, fonts and other design elements, making it easy to create professional looking design even if you have the design experience। तो पहले होता क्या था, बेसिकली जब कैनवा नहीं था और दूसरे टूल्स थे, फॉर एग्जांपल कॉरल टूल था, फोटोशॉप था, और बहुत सारे टूल्स थे, है ना, जो हम किसी भी मतलब ग्राफ को बनाने के लिए उसमें हमें बहुत सारा कुछ सीखना पड़ता था। लेकिन कैनवा ने क्या किया, कैनवा ने कैनवा ने एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे जो फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ और जो भी मतलब डिजाइन के जो टूल्स है उनको एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया। और एक प्लेटफॉर्म पे लाके तो यू कैन यूज द कैनवा फॉर एडिटिंग योर पिक्चर्स, एडिटिंग, यू कैन मेक ए वीडियो हियर, यू कैन मेक योर रील हियर, मतलब जो भी आप चाहते हैं, यू कैन मेक योर प्रेजेंटेशंस या जो भी अगर आप चाहते हैं वो आप इसमें यूज कर, मतलब जो कैनवा से आप यूज कर सकते हैं। तो कैनवा क्या है, कैनवा आपको फ्री वर्जन भी मिलता है और पेड वर्जन भी मिलता है। ठीक है ना, और हैक वर्जन भी मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो पेड वर्जन है, तो जाहिर सी बात है पेड वर्जन में फीचर्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है ना। लेकिन जो फ्री वर्जन होते हैं, लेकिन फ्री वर्जन में जो बहुत ज्यादा, बहुत कम मतलब फीचर्स होते हैं। लेकिन आप जब आप इफ यू आर ए रिसर्चर, इफ यू आर ए टीचर, और अगर आप चाहते हैं कि हमें कैनवा का पेड वर्जन नहीं चाहिए, यू डोंट नीड द पेड वर्जन ऑफ द कैनवा, तो यू कैन यूज द फ्री वर्जन, है ना। तो फ्री वर्जन में क्या करता है, फ्री वर्जन में ये आपको आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है, और यू कैन लर्न फ्रॉम द कैनवा, उससे आप सीख सकते हैं। और जब आपको लगे यू नीड टू द पेड वर्जन, हमें कुछ नई की जरूरत है, तो उसमें आप पेड वर्जन को भी ले सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं, आप पेड वर्जन को उसमें ले सकते हैं, है ना। तो इसमें कुछ बहुत सारे, जैसे कि मैं आपको यहाँ आज लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस तरह से कुछ एक दो वेबसाइट है उसके जरिए आप पेड वर्जन का जो फीचर्स है ना वो फ्री में ले सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो जो वर्जन होता है ना, तो वो स्टेबल नहीं होता। जैसे कि आज आपके पास है वो, ठीक है ना, लेकिन कल को क्या कर देगा, उसमें 500 जो भी 500 जो पार्टिसिपेंट्स हो गए, तो वो आपको मतलब खत्म कर देगा आपको बिना इन्फॉर्म दिए, है ना। और दूसरी चीज ये कि अगर आप यू आर ए टीचर्स, आप यू आर ए स्कूल टीचर्स, तो अगर आप स्कूल टीचर्स हैं तो यू कैन गेट द कैनवा प्रो फ्री, है ना। लेकिन आपके लिए क्या ना, स्कूल टीचर, इफ यू आर स्कूल टीचर है तब होगा, अगर आप स्कूल टीचर नहीं है तो नहीं होगा।
ठीक है ना। तो आप यूनिवर्सिटी टीचर है तो उसके लिए फैसिलिटी नहीं है। अगर आप स्कूल टीचर्स है, द कैनवा प्रोवाइड द फ्री प्रो वर्जन, है ना, आपको फ्री में देता है ना। उसके कुछ है, आपको आइडेंटिफिकेशंस आपकी देने पड़ती है, कुछ आई कार्ड देना पड़ता है, कुछ क्राइटेरिया है। तो वी विल डिस्कस अबाउट इट, है ना, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस है ना, इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली द इम्पोर्टेंस ऑफ द विजुअल कम्युनिकेशन रिसर्च इंट्रोडक्शन, है ना। तो जो विजुअल कम्युनिकेशंस होता है, तो विजुअल कम्युनिकेशंस का जब रिसर्च में क्या इंपॉर्टेंस होता है, तो क्या हम लोग जो विजुअल कम्युनिकेशंस जो विजुअल्स हम लोग इंसर्ट करते हैं अपनी रिसर्च में, हम उसको अपनी रिसर्च में जब इंक्लूड करते हैं, क्या उसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है, क्या उसका क्या कोई इम्पोर्टेंस होता है। वाई वी आर यूजिंग द ग्राफिक डिजाइन इन आवर रिसर्च, ठीक है ना। तो ये कह रहा बाय द यूजिंग विजुअल एड्स सच एज द ग्राफ, चार्ट, डायग्राम एंड इमेजेस, रिसर्चर्स कैन इफेक्टली कम्युनिकेट देयर फाइंडिंग टू द वाइडर ऑडियंस, ठीक है ना। तो क्या है, मतलब कहने का मतलब ये है, उन्होंने कहा कि जब भी हम अपने रिसर्च में, जब रिसर्च में ये ग्राफ्स, चार्ट और डायग्राम और इमेजेस और ये सारी चीजों का हम लोग यूज करते हैं, तो वो क्या करता है, तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो वी कैन कम्युनिकेट इजीली थ्रू द ऑल ग्राफिक्स, जो भी है ना ग्राफ्स होता है ना। whenever you are giving the presentation on your research, अगर वहां पर फोटोग्राफ्स नहीं होगा, आपके पास कोई ग्राफ्स नहीं होगा, आपके पास कोई डायग्राम नहीं होगा, तो वो जो प्रेजेंटेशन है ना, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगा, ठीक है ना। तो कुछ भी हो, कैसा भी हो, जब भी आप अपने जो भी मतलब रिसर्च में इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो योर रिसर्च विल बी वेरी इफेक्टिव एंड द ऑडियंस विल बी अट्रैक्ट, है ना। तो क्या होगा, इंक्लूडिंग दोज हु मे नॉट बी द बैकग्राउंड इन द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है ना। विजुअल कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो इनहेंस द ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऑफ द रिसर्च बाय द मेकिंग मोर इंगेज एंड मेमोरेबल, ठीक है। दिस कैन बी लीड इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, ये क्या करता है, दिस कैन बी, तो ये क्या कर रहा है, दिस कैन बी, this can lead the improved understanding, greater impact and increase interest in the research topic, है ना। तो ये सारे फीचर्स भी है यहाँ पर, है ना। ये सारे फीचर्स है, जब सारे फीचर्स होते हैं तो क्या हो जाएगा, तो आपका जो रिसर्च है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, एक्सप्लोरिंग कैनवा टेम्पलेट फॉर द रिसर्च रिलेटेड विजुअल, है ना। तो कैनवा क्या करता है, जब हम लोग रिसर्च कर रहे हैं तो कैनवा क्या कर रहा है, तो कैनवा ऑफर द वेराइटी ऑफ द टेम्पलेट दैट कैन बी यूज द क्रिएट रिसर्च रिलेटेड विजुअल, है ना। तो जब कैनवा का यूज करेंगे, जब हम कैनवा यूज कर रहे हैं, है ना, कैनवा यूज कर रहे हैं, कैनवा क्या कर रहा है, अब हमको बहुत सारी जगह ना हमको गूगल की जरूरत भी है, जब हमें गूगल की जरूरत नहीं है, ना हमें गूगल गूगल पर जाने की जरूरत है कि हम वहां से सर्च करें, कोई फोटो सर्च करें, कोई ग्राफ सर्च करें, कोई सर्च करें, कोई टेम्पलेट सर्च करें, और है ना। लेकिन कैनवा क्या कर रहा है, कैनवा क्या कर रहा है कि आपकी जो रिसर्च की डिजाइन है, उसकी रिसर्च की डिजाइन को वहां पर टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर रहा है, और यू कैन एडिट द टेम्पलेट्स, है ना। तो उस टेम्पलेट को एडिट कर सकते हो, अपना फोटो कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। यू कैन चेंज योर द फोटोग्राफ्स यर, यू कैन चेंज योर डेटा यर, हर चीज अपनी कर सकते हो, और वो क्या है, वो आपको बहुत ज्यादा प्रोफेशनल वे में होगा, सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल इन द कैनवा। और कैनवा क्या करता है, आपकी रिसर्च को और ज्यादा विजुलाइज करता है, यानी कि आपको उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। वहां पर टेम्पलेट ऑलरेडी अवेलेबल है, और उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आप अपनी डिजाइन को बहुत कम टाइम में यू कैन यू कैन डू योर द डिजाइन इन वेरी वेरी बहुत ज्यादा कम टाइम में। और कम टाइम क्या होता है, और फिर वो क्या होता है, आपका टाइम बता, जिस तरह से उन्होंने कहा कि टेम्पलेट्स templates that might be useful in the research related visual including infographics, chart and diagram, है ना। तो ये सारे जो क्या है, इंफोग्राफिक, चार्ट एंड डायग्राम के जो विजुअल्स हैं, वो आपके लिए क्या है, यूजफुल होते हैं। By the using these template, researcher can save time, टाइम बचा सकता है वो, effort while the creating high quality visuals that effectively communicate their research finding,
ठीक है ना। तो कैनवा क्या कर रहा है, कैनवा अलाउ द यूजर द कस्टमाइज देयर टेम्पलेट विद देयर ऑन डेटा एंड ब्रांडिंग, इंश्योरिंग द विजुअल्स आर द यूनिक एंड टेलर ऑफ द स्पेसिफिक रिसर्च नीड्स। ठीक है, तो ये सारी चीजों पे मैंने बता चुका हूं। तो ये सारी चीजों पे क्या कर रहा है कैनवा, आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल, बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, आपको इम्पैक्टफुल विजुअल प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आपका जो रिसर्च है वो क्या होगा, मोर इफेक्टिव। और मोर इफेक्टिव होने के साथ साथ यू कैन सेव द टाइम, यू कैन क्रिएट द इन हाई क्वालिटी। ठीक है ना, जो विजुअल भी हाई क्वालिटी के नहीं है कि आपने वहां से गूगल से लिया या कोई दूसरी वेबसाइट से लिया, पता चला जो फोटो आप यूज कर रहे हैं वहां का उसका पिक्सल ये ना वो फट रहा है ना, और जब फट रहा है ना तो उसका जो विजुअलाइज है तो वो अच्छा भी नहीं लगता, और आपको पता भी चल जाता है जिसके सामने आपने प्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर समझ आ जाता है कि आपने ये गूगल से लिया है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। लेकिन अब कैनवा क्या कर रहा है, कैनवा आपको तो हाई क्वालिटी में पिक्चर्स प्रोवाइड कर रहा है, विजुअल प्रोवाइड कर रहा है, इन्फोग्राफिक प्रोवाइड कर रहा है, चार्ट एंड डायग्राम प्रोवाइड कर रहा है, सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना, तो एक्सप्लेनिंग कैनवा टेम्पलेट विद द रिसर्च रिलेटेड विजुअल। ठीक है ना, अनदर वन इज कि एआई बेसिक्स एंड इट्स रोल इन द डेटा विजुअलाइजेशंस। ठीक है, तो अब हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से मतलब इसका क्या रोल है ना। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बिकम द प्रोमिनेंट टेक्नोलॉजी इन द रिसेंट ईयर विद एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड। One of these fields, the data visualization, where AI can assist in the creating visual representation of the complex data set। है ना, होता है ना, तो जब हम कोई अपनी रिसर्च हम कर रहे हैं, कोई सर्वे करते हैं, कोई डेटा जब हमारे पास होता है, तब हम उस डेटे को टेबल में करते हैं। टेबल में करने के बाद जब हम उसको चार्ट में क्रिएट करते हैं, चाहे वो पाई चार्ट हो, चाहे वो बार चार्ट हो, चाहे हिस्टोग्राम हो, या कोई सी भी चार्ट हो, वॉट एवर अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, है ना, कोई भी चार्ट हो, तो वो क्या करते हैं, तो जब हम उसको जो विजुलाइज करते हैं, विजुलाइज जब जब वन ऑफ द दीज फील्ड इज द डेटा विजुलाइजर वेयर एआई कैन असिस्ट द क्रिएटिंग विजुअल रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स डेटा सेट। तो जो मतलब आपके पास कॉम्प्लेक्स डेटा सेट होता है, जो अनऑर्गेनाइज तरीके का डेटा होता है, तो उसमें क्या कर रहा है एआई, क्या कर रहा है एआई विल हेल्प यू, है ना, आपकी मदद कर रहा है। वो किस तरह से मदद कर रहा है, आपके डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है ना, AI can analyze the data, identify patterns, generate insight, making it easier to use, understand, and the interpret data. ठीक है ना, AI can automate the process of the creating visualizations, saving time, resources with its ability process of the large amount of the data quickly and accurately. AI has become the important tool in the data visualization and analysis। ठीक है, तो ये डेटा विजुअलाइजेशन के लिए हम कैनवा का तो यूज करेंगे। कैनवा के साथ साथ हम आपको और सारे एआई के जो एआई टूल्स है के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से डेटा या रिसर्च के विजुअलाइजेशंस को का कितना फायदा पहुंचाता है। ठीक है, जबकि इसमें भी बेसिकली ये जो कैनवा है, कैनवा वर्जन में भी एआई का यूज है। ठीक है ना, तो उन्होंने बहुत ज्यादा अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है, और यू कैन यूज द कैनवा फॉर आई, है ना। तो हम इसके बारे में सब डिस्कस करेंगे आगे जब प्रैक्टिकली करेंगे, आज भी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है ना, तो अब अनदर वन इज, अब ये हम समझ लेते हैं कि कैनवा की ने जो कुछ स्टडीज की, ठीक है, कुछ स्टडीज की और उन्हें इम्पैक्टफुल पाया कि जो कैनवा है, तो कैनवा क्या कर रहा है, कैनवा विल क्या कर रहा है, और हेल्प कर रहा है रिसर्च की, जो भी रिसर्च कर रहा है ना। तो केस स्टडी ऑफ द सक्सेसफुल रिसर्च प्रोजेक्ट यूजिंग कैनवा एंड एआई। तो एक केस स्टडी के बारे में कैनवा ने कहा कि मैं आप फॉर एग्जाम्पल mapping air pollution in Delhi using AI, Canva researcher at the center of the science and environment, है ना। तो उन्होंने सेंटर जो सेंटर फॉर द साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE के जो रिसर्च से उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने रिसर्च को विजुलाइज करने के लिए कैनवा का यूज किया। ठीक है,
तो क्या किया, यूज AI टू एनालाइज द सैटेलाइट डेटा एंड मैप देयर पॉल्यूशन लेवल इन दिल्ली। They they then use the Canva to create the interactive infographics and map to the effectively communicating their finding to the policymaker and public. The project success lead in Delhi government taking step to curb air pollution. तो उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने एक डाटा कलेक्ट किया, उस डेटा को, अपने रिसर्च डाटा को कलेक्ट किया, और रिसर्च डाटा को कलेक्ट करने के बाद कैनवा के हेल्प से उन्होंने क्या कर लिया, उसको कैनवा के जो डायग्राम्स थे, इंफोग्राम्स थे, उसको क्या कर लिया, उसको विजुअलाइज कर लिया। तो जब वो विजुअलाइज कर लिया, तो जब वो प्रेजेंट किया गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स के सामने, तो वहां पर उन लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगा, और उन लोगों का जो प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट क्या हो गया, वो प्रोजेक्ट पास कर लिया गया। ठीक है ना। तो एक केस स्टडी है, और द केस स्टडी 2 इज हियर ऑल्सो, है ना। एक केस स्टडी क्या है, एक केस स्टडी है द केस स्टडी ऑफ द सक्सेसफुल रिसर्च प्रोजेक्ट यूजिंग कैनवा AI। केस स्टडी 2, क्या केस स्टडी 2 है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर ने क्या किया, यूज AI टू एनालाइज द वेदर एंड प्रिडिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज इन क्रॉप यील्ड इन इंडिया। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी मतलब IIT खड़गपुर ने भी क्या किया, एक डेटा लिया, डेटा को मतलब उन्होंने एनालाइज किया। ठीक है, क्लाइमेट चेंज इन इंडिया और क्रॉप्स पर कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस पर जो मतलब क्रॉप्स है, क्रॉप्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, और वेदर का क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो सारी चीजों को। तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी आल्सो they then use the Canva to the create visualize appealing presentations and yield share with the farmers and policymaker. The project help the farmer to adapt their agriculture practices to changing weather pattern. ठीक है। तो उन्होंने एक अपने प्रेजेंटेशंस के जरिए, अपने प्रेजेंटेशंस में जो कैनवा के विजुअल्स को जो यूज किया, कैनवा के जो ग्राफिक्स और इंफोग्राफिक्स और चार्ट को जो यूज हुआ, तो उससे जो पॉलिसी मेकर तो मतलब उससे इफेक्ट हुआ, पॉलिसी मेकर तो अट्रैक्ट हुए। उसके साथ वो जो फार्मर थे, दे आर नॉट द मोर लिटरेट, तो वो फार्मर को भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। बहुत अच्छा लगा कि भाई इसे इतने इजीली तरीके से दे कैन अंडरस्टैंड यूजिंग द विजुअल, है ना। तो उन्होंने क्या किया, विजुअल को के जरिए बहुत अच्छे से समझा। ठीक है ना। तो अनदर वन इज क्या है, केस स्टडी नंबर 3। केस स्टडी नंबर 3 वी विल डिस्कस हियर के researcher at the Indian Institute of the Science IIC Bangalore developed an AI powered tool for the early detection of the breast cancer। ठीक है। तो उन्होंने अर्ली डिटेक्शन ब्रेस्ट कैंसर के बारे में क्या किया, क्या क्या, बैंगलोर डेवलप AI पावर टूल फॉर अर्ली डिटेक्शन, है ना। उन्होंने एक पावर टूल का मतलब क्या क्या किया, उनको इनोवेशन किया, और वो क्या कहते हैं ना, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ठीक है। तो they use the Canva, create the infographic and explain the video and educated women about the importance of early detections and breast self examinations। ठीक है। तो उन्होंने एक क्या कर दिया, एक उन्होंने वहां पर एक वीडियो क्रिएट किया, और वीडियो में कुछ ग्राफ्स का यूज किया, सारी चीजों का यूज किया, और उस वीडियो के जरिए उन्होंने जो आम पब्लिक थी, तो लेडीज थी, तो उनको समझाया तो वीडियो की तरह दे कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज द कॉजेज ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। तो उसके बारे में समझाया कि कैसे हम इसको सेल्फ एग्जामिनेशन करें, इसको हम प्रिकॉशन कैसे लें, वो सारी चीजों के बारे में समझाया। तो वहां पर जो आम पब्लिक थी, दे कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, है ना। द प्रोजेक्ट हेल्प द इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर अमंग द वुमेन इन इंडिया। ठीक है ना। तो ये तीन जो केस स्टडीज है, कैनवा के बारे में बता दिया। ठीक है ना। इसके साथ क्या है, इसके साथ है एक केस स्टडी और है विज्ञान प्रसार साइंस कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट। इसमें भी वही चीज है ना। इसमें भी उन लोगों ने पूरा ग्राफिक्स का यूज किया, ग्राफिक्स का इंफोग्राफ, पोस्टर है, सोशल मीडिया ग्राफिक्स का यूज किया, है ना। उससे उसका प्रोजेक्ट में हेल्प मिली। ठीक है ना। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ये देखना है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द
कैनवा के कैनवा को कैसे हम लोग करेंगे, तो हाउ टू लॉग इन द कैनवा। सबसे पहले गो टू canva.com एंड सेलेक्ट द साइन अप। ठीक है ना, साइन अप या साइन इन। फ्रॉम द साइन अप पेज चूज द कंटिन्यू विद द ईमेल और कंटिन्यू विद द वर्क ईमेल। ठीक है ना, इंटर द ईमेल एड्रेस यू वुड लाइक टू यूज द कैनवा फॉर। ठीक है ना, आप नंबर 4 इंटर द ऑथराइजेशन कोड, वी विल सेंड योर ईमेल एड्रेस, है ना। तो ये हो गया। वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस बाय द फॉलोइंग द स्टेप इनटू ईमेल वी विल सेंड यू, इंटर द कंफर्मेशन कोड फ्रॉम द ईमेल ऑफ टू यू रिसीव। तो कैनवा को लॉगिन करना है, कैनवा को लॉगिन करना बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग canva.com पे जाएंगे, वहां पर हम लोग साइन अप करेंगे। उसके बाद साइन अप पेज के बाद है हम क्या करेंगे, कंटिन्यू विद द ईमेल। जो ईमेल हम डालेंगे वहां पर, जो भी हमारा ईमेल है, और ईमेल जब ईमेल एड्रेस इंटर करने के बाद वुड यू लाइक टू यूज कैनवा। ठीक है ना, इंटर ऑथराइजेशन कोड। जो ऑथराइजेशन कोड है वो आपके ईमेल एड्रेस पर जाएगा, उसको आपको वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के बाद आपको उसको कंफर्म करना है, और कंफर्मेशन मिलने के बाद आप यू कैन यूज द क्या, कैनवा। ठीक है ना, तो अब कैनवा को यूज कर सकते हैं। कैनवा के अभी हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, ये थोड़ा सा है ना। तो ये कैनवा का कैनवा वर्जन क्या है, कैनवा वर्जन है ये फ्री वर्जन है, प्रो वर्जन और हैक वर्जन है। तो तीनों वर्जन के बारे में वी विल डिस्कस, है ना। ठीक है ना, तो अब ये क्या करेंगे, हम लोग बात करते हैं पहले तो कैनवा की जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे कि किस किस के क्या डाउट्स है, कहाँ कहाँ किसको कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है ना, वो सारी चीज़ों के बारे में वी विल डिस्कस। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कैनवा को, यहाँ से हम क्या करते हैं, कैनवा एक्चुअली हमारा ऑलरेडी ऑलरेडी लॉगिन है, तो इसलिए हमारा डायरेक्ट पेज पर खुल गया। ठीक है ना, तो हम ये क्या करते हैं, हम यहाँ से दूसरा कोई, ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको पहले साइन आउट कर लेते हैं ना। साइन आउट मतलब ये हम फिर दोबारा से इसको लॉग इन करेंगे। ठीक है, तो इसका जो प्रोसेस है ना, इसका प्रोसेस आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा ना। देखिए, जब हम एक अ, जब हम इसका एक canva.com पर जाएंगे, तो canva.com कहाँ से, हम गूगल से ले सकते हैं। गूगल से कह सकते हैं canva.com कहते हैं, या डायरेक्ट डाल सकते हैं canva.com कर सकते हैं, या डायरेक्ट कर ले। तो canva.com क्या हो गया ये, ठीक है। canva.com हमारा यहाँ पर खुल गया। यहाँ खुलने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया, ये दो चीजें, कंटिन्यू विद अनदर अकाउंट और कंटिन्यू विद, जैसे कंटिन्यू जो हमने किया था यहाँ पर, वो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर है, तो इसलिए ये आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंटिन्यू लॉग इन साइन अप। तो अब ये साइन अप कहाँ से करना है, कंटिन्यू विद द फेसबुक, कंटिन्यू विद द ईमेल, कंटिन्यू विद अनदर वे। ठीक है, कंटिन्यू विद द गूगल। तो हम कंटिन्यू, जैसे कि अगर गूगल का आपका है, तो गूगल पर अगर आप करेंगे, तो गूगल का आपको क्या कर देगा, जो भी आपने ईमेल ऑलरेडी कर रखा है उसके अकॉर्डिंग ये जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम क्या करते हैं, हम दूसरा पार्ट देखते हैं, कंटिन्यू विद द ईमेल, गो टू बैक ऑन लॉग, हम कंटिन्यू विद द ईमेल, अगर अदर ईमेल पे हम लोग करते हैं। ठीक है, ईमेल पर अदर पे करके देखते थे कैसे होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हमने एक ईमेल लिया, info@digital-academy.com, और यहाँ हमने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद क्या है, देखिए ये यू आर क्रिएटिंग कैनवा प्रो इन्फो जीमेल नेम इन्फो। अब जहाँ आपको जो भी कुछ नाम है आज देना है, जैसे कि हमने लिख दिया भारत, हमने लिख दिया भारत, और जो आप अपना यहाँ नाम लिख सकते हैं, और नाम इज, मैंने लिख दिया नाम इज रफीक। ठीक है, रफीक लिख दिया। ठीक है, ये क्या, कंटिन्यू कर दिया। अब ये क्या रहा है, इंटर द कोड वी हैव सेंड टू। अब इस ईमेल आईडी पे आपको एक कोड गया है। ठीक है ना, अब एक कोड क्या गया है इस ईमेल आईडी पे, हम लोग ये कोड देख लेते हैं, ईमेल आईडी पे क्या कोड गया है। ठीक है ना,
ये हमारा कौन सा है, ये हमारा दूसरा ईमेल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अब हमने ये ईमेल लॉगिन किया। ईमेल लॉगिन किया तो हमारे पास ये क्या, देखो एक कोड आया है यहाँ पर। ये कोड क्या है, लॉगिन टू द कॉन्वा कैनवा, यहाँ से हमने कॉपी किया, कंट्रोल सी करने के बाद हमने क्या किया यहाँ पर, इसमें हमने पेस्ट कर दिया इसको, और फिर हमने क्या कर दिया यहाँ पर, क्या कर दिया, अब क्या कर दें ये, यू डोंट हैव द परमिशन टू सी द डिजाइन, वांट टू यू रिक्वेस्ट टू एडिट। ठीक है ना, तो आपको क्या क्या है, want to view or the edit design, you are currently log in the ये, ठीक है, request to access, ठीक है, go to back home, ठीक है, your request has been sent to you will be an email if you are on a design approved the, ठीक है। तो यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे, फिर से इसने क्या किया है, अब ये क्या है, गो टू होम। ठीक है, अब ये गो टू होम हो गया। अब यहाँ से उन्होंने क्या कर दिया, अब आप हो क्या, अब आपको करना क्या है, लार्ज कंपनी हो, नॉन प्रॉफिट हो और चैरिटी हो, टीचर्स हो, स्मॉल बिजनेस है, पर्सनल है या स्टूडेंट्स है, जो भी वट एवर यू वांट टू लॉग इन, जैसे जो भी हो आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप टीचर हो। ठीक है, आप टीचर्स क्या कर रहे हैं, जब आप टीचर्स पे क्लिक करेंगे तो ये कहेगा आपके, आपका है ना, that must be fun, what type of the school do you teach, we can give you the best canva experience based on your teach। अब ये कहेगा आपको कि ये प्राइमरी लेवल से इतने लेवल तक हायर एजुकेशन और समवेयर एल्स, तो आप कौन से टीचर्स हो, फॉर एग्जांपल हायर एजुकेशन नहीं, आप आपने ये वाला ये चूज किया, ठीक है ना, प्राइमरी, और तो अब ये कह रहा है आपसे के 3 टीचर्स गेट द प्रीमियम कैनवा फॉर द फ्री वार्ड स्कूल यू टीच इट। ठीक है, तो ये क्या करेगा आपको, ये फ्री में कह रहा है कि हम आपको फ्री में दे रहे हैं। ठीक है, जो आपने कहा कि इसको ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि हम आपको फ्री में दे रहे हैं, आप फ्री में अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब क्रिएट करने के लिए अकाउंट, अगर आप टीचर्स है और अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो वेरीफाई योर एन एक्टिव स्कूल टीचर्स एंड गेट द कैनवा फॉर द स्कूल फॉर फ्री। We might also ask to upload some document to help your verification। तो अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है वो, चेक फॉर एलिजिबिलिटी। अब आपने चेक फॉर एलिजिबिलिटी कहा, और यहाँ पर आपको देखिएगा, हियर हियर एट द कैनवा वी थिंक आई लर्निंग इट इज अ गिफ्ट। ठीक है, तो उसने उसने कहा कि ये सारी चीजें आपको देना पड़ेगा अगर आप हैं। आप क्या, प्लीज नोट द कैनवा फॉर एजुकेशन करेंटली अवेलेबल फॉर द K-12 यानी प्राइमरी टू सेकेंडरी टीचर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इट इज नॉट करेंटली अवेलेबल फॉर द हायर एजुकेशन टीचर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज के लिए नहीं है, बल्कि ये किसके लिए है, जो लोग प्राइमरी से लेकर 12th तक अगर पढ़ाते हैं, टीचर्स हैं और उनके पास वैलिड आई कार्ड है, तो उसके लिए आपको ये फ्री में आपको प्रोवाइड होगा। ठीक है, आप तो क्या करना है इसमें, टू एक्सेस द कैनवा फॉर द एजुकेशन यू मस्ट बी करेंटली एक्टिव इज वन ऑफ द फॉलोइंग रोल्स। ठीक है, रोल्स, ठीक है, क्या है, ए सर्टिफाइड K-12 प्राइमरी और सेकेंडरी टीचर फ्रॉम द फॉर्मल एग्रीगेटेड स्कूल हु इज द करंटली इन द टीचर पोजीशन। ठीक है ना, तो ये समझ लिया आपने। अब ये क्या, ए सर्टिफिकेट K-12 प्राइमरी स्कूल लाइब्रेरियन। ठीक है ना, ए सर्टिफाइड K-12 प्राइमरी टू लर्न सपोर्ट एडिशनल फॉर द टीचर। और ये फिर क्या है, ये सारी चीजें करिकुलम स्पेशलिस्ट, ये सारा दे रखा है। ठीक है ना, उसके बाद द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस कैन आल्सो एक्सेस द कैनवा फॉर एजुकेशन, K-12 प्राइमरी सेकेंडरी प्रे कॉलेज स्कूल, स्कूल डिस्ट्रिक्ट, गवर्नमेंट ऑफ स्कूल्स, अदर ग्लोबल। हाउ लॉन्ग डज बाय द एक्सेस द कैनवा फॉर द, तो इसके लिए क्या है, the for as the long as you are an active eligible teachers or organization, your Canva for the education user are prompted to that re-verify your credential every 3 year। है ना, एक बार कर लिया तो 3 साल के बाद फिर आपको दोबारा से उसको करना पड़ेगा। अब कौन कौन कर सकता है, कौन 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 हु कांट एक्सेस द कैनवा फॉर, है ना, तो उन्होंने आपको ये सारी चीजें के बारे में बता दिया है कि कौन का प्री स्कूल और डे केयर असिस्टेंट, पब्लिक लाइब्रेरियन, सर्टिफाइड प्राइमरी हु आर नॉट करंटली इन टीचिंग पोजीशन।
तो ये लोग नहीं कर सकते इसका यूज, उन्होंने पूरा आपको बता दिया, ठीक है ना। ठीक है, हाउ डू आई प्रूव द एलिजिबल फॉर द कैनवा? इफ यू साइन अप द कैनवा विद द वेरीफाई एजुकेशन ईमेल यू कैन गेट द एक्सेस राइट, ठीक है ना। अप्रूव डॉक्यूमेंट, अब उन्होंने कहा कि भाई ये सारी चीजें देंगे, इसके अलावा आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगना है। तो उन्होंने बता दिया कि सबसे पहले फोटो और स्कैन ऑफ द लाइसेंस सर्टिफिकेशंस इंडिकेटिंग द टीचिंग क्वालिफिकेशंस, ठीक है ना। तो उसके बाद फोटो और स्कैन शो द एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एट द स्कूल वी आर रिक्वेस्ट बाई अस। फोटो और स्कैन ऑफ द स्कूल आईडी इंडिकेटिंग द टीचिंग स्टेटस, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडिंग द एन ऑर्गेनाइजेशंस status as a government recognized formally aggregated K-12 प्राइमरी स्कूल और प्रे कॉलेज एजुकेशन। तो ये सारी चीजों के बारे में बता दिया कि देखो हम इन सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, ये हम जब अप्रूव डॉक्यूमेंट्स ये हैं, ये अगर ये डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड कर दोगे तो हम क्या कर देंगे, आपका जो टीचर्स का जो अकाउंट है उसका टीचर दो गेट, फिर बाद में क्या हो जाएगा, फिर वो गेट वेरीफाइड होगा। गेट वेरीफाइड मतलब जो आप डाल देंगे उसके बाद क्या करेगा, गेट वेरीफाइड करेगा। जैसे कि ना ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री नेम, स्कूल एड्रेस, स्कूल वेबसाइट, ये सारी चीजें जानने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग इसमें जो हमारा कैनवा का एजुकेशन का हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम लोग इसको बिना एजुकेशन के करेंगे, तभी हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं आगे, ठीक है ना। ठीक है, तो अब ये एक तरह से हमारा क्या हो गया, ये एक तरह से हमारा एक इंटरफेस हो गया। इंटरफेस करने के डिजाइन यू क्रिएट ओपन विल बी शोन हियर, जो भी डिजाइन आप करेंगे वो यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए हम यहाँ पर ये एक कैनवा का क्या है, कैनवा का एक इंटरफेस खुल के आ गया, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें थे, कैनवा दे रखा है या लिस्ट दे रखी है, ये डिजाइन स्पोर्ट्स लाइव, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, विजुअल डॉक्यूमेंट, विजुअल सूट डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, व्हाइट बोर्ड, पीडीएफ एडिटर, ग्राफ्स एंड चार्ट, फोटो एंड वीडियोस, वीडियो एडिटर, यूट्यूब वीडियो एडिटर, फोटो चैलेंजेस, बैकग्राउंड रिमूवर, ठीक है। बिजनेस का प्रिंट कर सकते हैं, बिजनेस कार्ड इंडिविजुअल मग, जो भी पता, मार्केटिंग, लोगो, पोस्टर, फ्लायर, ब्राउचर, सोशल मीडिया, वेबसाइट, ये सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या किया उन्होंने, कहा बिजनेस के लिए कैनवा इंटरप्राइजेस, कैनवा टीम, कॉन्टेक्ट सेल, ये सारी चीजें इसके पे इन्होंने दे रखी है। उसके बाद एजुकेशन, तो अब उन्होंने कहा कि भाई टीचर्स स्कूल, स्टूडेंट, टीचर्स रिसोर्स, एलएमएस, केस स्टडी, हायर एजुकेशन, तो एजुकेशन के बारे में उन्होंने सारी चीजें यहाँ पर दे रखा है। अब प्लान एंड प्राइसिंग फ्री है, ठीक है, तो प्रो है, और ये क्या प्रो क्या मतलब है, 4,000 रुपये करीब आपका ये जाता है, ठीक है ना। तो हम फ्री वाले में हम कौन सा यूज कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग डिजाइन स्टार्टिंग, हम लोग कहाँ से कौन सा हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फ्री वाला यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग हियर ना फ्री वाला, ठीक है। तो हमने यहाँ कर दिया, ये हमारा वो हो गया। तो इसके बाद लर्न मोर, अब क्या करते हैं, क्रिएट योर टॉप डिजाइन, लोगो मेकर, फ्लायर, बैनर, ये सारी चीजें है, कैनवा ब्लॉग, डिजाइन स्कूल, इवेंट्स, हेल्प सेंटर है, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, यू कैन लर्न फ्रॉम हियर, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये देखिए डाउनलोड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये एक सेटिंग है, ये क्या है, ये नोटिफिकेशन, जो भी नोटिफिकेशन आपका, ये यहाँ पर एक क्रिएट डिजाइन। तो हम जब क्रिएट डिजाइन पे जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे दिए, डॉक्यूमेंट्स है, वाइट है, इंस्टाग्राम पोस्ट है, प्रेजेंटेशन है, वीडियो है, पोस्टर है, डॉक्यूमेंट्स है, यूट्यूब थंबनेल्स है, रिज्यूम है, फ्लायर है, लोगो है सर्टिफिकेट है, योर स्टोरी है, मोबाइल वीडियो है, वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं, इनविटेशंस क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम रील भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सबका इन्होंने साइज अपना दे रखा है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या कर रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने ये जो हमारा क्या किया है, ट्राई प्ले विद कैब, तो ये उन्होंने यहाँ पर जो हम लोग ऊपर अभी देख रहे थे, जैसे डॉक्यूमेंट्स अगर हम खोलते हैं, व्हाइट बोर्ड खोलते हैं, इंस्टाग्राम है, प्रेजेंटेशन है, वीडियो है, ठीक है ना, पोस्टर है, डॉक्यूमेंट्स है, यूट्यूब है, जो भी हमने ऊपर कहा ये सारा उन्होंने इन्फोग्राफिक की शक्ल में, सर्टिफिकेट हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है बॉस, इंस्टाग्राम रील, इनविटेशन कार्ड, सारी चीजों को हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो अब हम सबसे पहले जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें, और यहाँ पे सारी चीजें देखो फॉर यू, ये कुछ सारी चीजें दे रखी है कि फॉर एग्जांपल हम देखिए, हम इसमें एक चीज का थोड़ा सा अभी हम लोग
इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी सीखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल आपको ये लग रहा है कि मुझे कोई एक वीडियो क्रिएट करना है या एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है। आपने कहा कि ठीक है मुझे एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है, ठीक है ना, और प्रेजेंटेशन क्या है, रिकॉर्ड प्रेजेंट योर विद द ट्राई है, तो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोलैबोरेशन प्रेजेंटेशन या सिनेमेटिक प्रेजेंटेशन, है ना, कोई भी सिनेमेटिक प्रेजेंटेशन, एनिमेशन एंड ऑडियो, ठीक, कोलैबोरेशन प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो ये सारे प्रेजेंटेशंस करा सकते हैं। बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको चाहे चाहे इस टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हैं। अगर आप टेम्पलेट का यूज नहीं कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज द दिस, देखिए, है ना, कि फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि जो भी मैं एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहता हूँ वो प्रेजेंटेशन कैसे है, आप यहाँ ट्राई कीजिए कि प्रेजेंटेशन कीजिए। आपको एक लेसन क्रिएट करना है या कोई भी टॉपिक है, कोई भी टॉपिक के बारे में, फॉर एग्जाम्पल आप एक टॉपिक ले लीजिए। हाँ, ठीक है, आपने कहा कि मुझे इस पे एक वो करना है, तो ये क्या कर देगा आपको, तो ये क्या कर देगा, देखिए दो चीजें हैं उन्होंने। एक तो आपका ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली जब इसमें एआई ऑलरेडी दे रखा है, तो तो अब ये कह रहा है कि जो आपने यहाँ पर आपने जो यहाँ पर ये एआई का जो यूज कर रहे हैं आप, तो एआई का यूज तभी कर सकते हैं तब आपके पास प्रो वर्जन होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि वो कुछ फ्री वर्जन देता है। स्कूल प्रेजेंटेशन, होलो प्रेजेंटेशंस, ठीक है। तो अब इन्होंने ये नहीं दे रहे, अब इसमें देखो ये बहुत सारे आपके पास क्या है ना, प्रेजेंटेशंस के स्लाइड्स अवेलेबल है, तो यू कैन यूज इस तरह से स्लाइड्स को यूज कर सकते हैं आप, ठीक है ना, बहुत सारे स्लाइड यूज कर सकते हैं आप, है ना, बहुत सारे ज्यादा क्या है स्लाइड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या रहा है, जैसे कि ये तो प्रो वर्जन नहीं है, तो प्रो वर्जन नहीं हो रहा है तो आपको क्या कर रहा है, ये आपको ये प्रोवाइड नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपके पास प्रो वर्जन है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो प्रो वर्जन यूज कर रहे हैं कैनवा का, तो जब प्रोवर्जन यूज कर रहे हैं तो वो किस तरह से एआई में सर एआई की हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो वो किस तरह से एआई की हेल्प कर रहा है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास ये जो हमारा जो है ये प्रो वर्जन है, ठीक है, प्रो सर वर्जन में कितना फीस है इसका, प्रो वर्जन का फीस कितना होता है? फीस कुछ नहीं मैम, इसका 4,000 रुपये साल का होता है, यानी तकरीबन आप महीने का समझ लीजिए, महीने का समझ लीजिए कितना होगा, 400 रुपये करीब का महीने का, 300 350 रुपये का महीने का होता है। और ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, आप इसमें महीने का भी ले सकते हैं, मंथ का भी ले सकते हैं, 6 मंथ का भी ले सकते हैं, 1 ईयर का भी लेते हैं, देयर इज ए नो मैटर। और एक टेक्निक और बताऊंगा मैं आपको प्रो वर्जन की, ठीक है, अभी बाद में बताऊंगा। बिंगो टिंगो से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये फ्री में कर सकते हैं, फ्री में आप इसका इसका जो पेड वर्जन कर सकते हैं। लेकिन पेड वर्जन जब फ्री में करेंगे ना, वो स्टेबल नहीं होता है। स्टेबल क्या होता है कि वो जैसे कि 500 जो जब पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एजुकेशनल जो हमने जो बताया ना फ्री वाला, तो बहुत सारे लोग वो एजुकेशनल का ले लेते हैं और एजुकेशनल लेने का वो बेचते हैं या फिर उस पर डाल देते हैं, तो 500 जो मेंबर्स हो जाते हैं फिर वो आपको रिमूव कर देता है। तो जो आपका डेटा होता है वो रहता तो आप ही के पास है, लेकिन फिर आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए सबसे पहले मैं सजेस्ट आपको यही करूंगा कि जो वेन एवर यू आर यूजिंग द कैनवा, जो आप यूज करेंगे, तो कैनवा यूज करने के लिए आप सबसे अच्छा है पेड वर्जन है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे थे, हम लोग ये बात कर रहे थे प्रेजेंटेशन पे। जब हमने वहां पर प्रेजेंटेशन डाला तो वो प्रेजेंटेशन में क्या कर रहा है, हम लोगों को एआई का यूज जो करा रहा है, लेकिन हमें वहां पर वो टेम्पलेट नहीं क्रिएट करके था। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब हमने कहा कि ठीक है, अब हमने कहा एजुकेशन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया,
ठीक है, हमने कहा कि हमें एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया पर एक एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है, और हमें अब स्लाइड नहीं करना है, बल्कि हमें ऑटोमेटिकली करना है, क्योंकि ये जो है ना, ये विद द एआई, यानी एआई के थ्रू ये क्या कर रहा है, एआई के थ्रू क्या कर रहा है, प्रेजेंटेशन के। देखिए यहाँ पर इसने क्या कर दिया, अब देखिए यहाँ पर इसने क्या कर दिया, ये बहुत सारे प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर दिए। हमने एजुकेशन इन इंडिया डाले तो उन्होंने कितने कर दिए, 1 2 3 4, यानी कि हमको उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 उसने प्रेजेंटेशन हमने क्रिएट करी। तो हम प्रेजेंटेशन खोला, देखिए ये प्रेजेंटेशन खोला, तो ये प्रेजेंटेशन खोला, ये देखिए ये सारे प्रेजेंटेशन के जो स्लाइड्स है हमें दे दिए यहाँ पर। हम इसको यहाँ पर अप्लाई कर लें, अप्लाई करने के बाद वो यहाँ आ जाएगा इनसाइड द इनटू द इंडियन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, पूरा इसने यहाँ पर ये दे दिया। ठीक है, देने के बाद आपने क्या किया, आपने यहाँ क्रिएट की। ठीक है ना, ये पूरा टेम्पलेट, ये पूरा ओवरव्यू आपको बना के दे दिया। ठीक है, सिस्टम एंड लर्निंग, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया ओवरव्यू क्या है इसका, इनसाइट इनटू द इंडियन सिस्टम। ठीक है, Sir, ये can we write at least 25 slides then? They ट्वेंटी can फाइव write स्लाइड्स 25 एक्चुअली slides. ये 25 स्लाइड्स नहीं लिखेगा ये, इसके लिए फिर आपको दूसरा जैसे वेब के आई है, बहुत सारे प्रेजेंटेशंस के आई है, उसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको क्या कर दे, ये मैक्सिमम आपको फाइव फाइव जो है ना, 5 स्लाइड्स देगा। ठीक है ना, लेकिन आप यह क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको करना है और कुछ करना है, तो आप यहाँ से ना यहाँ से क्रिएट करके, जैसे कि आपको कोई स्लाइड्स क्रिएट करना है, जैसे आपने यहाँ पर कुछ, जैसे यहाँ हम लोग चाहते हैं कंट्रोल, यहाँ पर कंट्रोल टी का नहीं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग टी का इस्तेमाल करेंगे, टी आ जाएगा ये, और हमने यहाँ पर लिख दिया द पास्ट गवर्नमेंट गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी। तो आपने कहा कि ठीक है, इस हेडिंग पर मुझे ये स्लाइड्स क्रिएट करनी है। ठीक है, तो वो क्या करना होगा आपको, यू कैन, ये ना मैजिक राइट, तो इसमें ये एआई का यूज करता, तो आपने यहाँ पर किया मैजिक एआई में गए, और आपने आपने यहाँ पर क्या किया, कंटिन्यू राइटिंग। तो ये क्या कर देगा, जो हेडिंग आपने दी है, दिस टॉपिक मे नॉट बी इंटेंडेड योर मैजिक राइट, ट्राई अगेन टॉपिक द पोस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, इसके अकॉर्डिंग आपको लिख कर दे देगा, दिस टॉपिक मे नॉट बी इंटेंड द मैजिक राइट अनदर टॉपिक। अच्छा, ये टॉपिक जो इसमें कुछ दिक्कत आ रहा है, ठीक है। तो हम जैसे कि यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टूल्स दिए गए ना, उस टूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, उस टूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग कैनवा से अपने जो कंटेंट को, जो इससे रिलेटेड कंटेंट है, उसको हम राइट करवा सकते हैं, लिखवा सकते हैं ना, और उसके बाद शॉर्ट भी करा सकते हैं, समराइज करा सकते हैं, एक्सपेंड करा सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, अरे भूल गए तो हम इससे करते हैं। देखिए ये एक एआई टूल्स यहाँ पर जो दे रखा है ना, स्टार टाइप से, इससे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इससे कह दे एक्सपेंड, तो ये देखिए पूरा ये इसने क्या कर दिया। अब हमें एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्या कर दिया, इसका फॉन्ट हम यहाँ से बढ़ा लें, हम 30 फॉन्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये दे दिया हमें। अब ये देने के बाद आपने कहा कि ठीक है, ये तो दे दिया इसने ना, इसके देने के बाद हमने यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई ना स्लाइड को यहाँ से इसको स्लाइड को यहाँ पर आपने डुप्लीकेट कर लिया, डुप्लीकेट यहाँ से कर लेंगे, डुप्लीकेट कर लिया, ताकि आपके पास ये एक ना एक फॉर्मेट आ जाए। फॉर्मेट मतलब ये कि उसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने इसको कंट्रोल जेड करके इस तरह के स्लाइड्स में आपको इस तरह के स्लाइड्स में लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ पॉइंट्स आ गए, पॉइंट्स लेने के बाद यहाँ पर जो भी हेडिंग है आपकी, तो हेडिंग का कलर जो भी है आपका, ठीक है ना, यहाँ पर आप हेडिंग के मतलब चेंज कर सकते हैं।
यू कैन चेंज योर, देखिए ऑटोमेटिकली चेंज हो गया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हो आप, इसको बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, इसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, इसको एडिट कर सकते हो। और ये एडिट करने के बाद आपके पास ये फोटो है, आपने कहा कि नहीं ठीक है मुझे इसके फोटो चाहिए, तो एलिमेंट्स में जाना पड़ेगा। और एलिमेंट्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, जैसे कि जो भी फोटो एजुकेशन, ठीक है ना, तो वो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी फोटो, सारे फोटो दे देगा आपको, ग्राफ्स देगा, फोटो देगा। देखिए ग्राफ्स ये है आपके, इस तरह के ग्राफ्स देगा। आप चाहे ग्राफ्स यूज कर सकते हैं, और चाहे फोटो यूज कर सकते हैं, और चाहे वीडियो यूज कर सकते हैं, चाहे शेप यूज करते हैं, तो कोई भी चीज है। तो फोटो हम लोग यूज करते हैं ना, वी विल यूज यार द फोटो। तो फोटो देख लो, उन्होंने बहुत सारे फोटो हमको दे दिए। ठीक है, हमें एजुकेशन के बारे में फोटो करना है, अब हमें ये फ्रेम में, अब हमें समझ में आ रहा है कि हमें ये फ्रेम चाहिए नहीं चाहिए, या फ्रेम को हमें चेंज करना है। हमें ये फ्रेम नहीं चाहिए, वी डोंट नीड दिस फ्रेम। तो हमने क्या कर दिया, एक ये फ्रेम लिया, और हम इस फ्रेम के अकॉर्डिंग करेंगे, हमें इतना बड़ा फोटो चाहिए। ठीक है ना, या फिर हमने हमने ये कर दिया, और फोटो को हमने और कर दिया हमने, हमें इस तरह का फोटो चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से हम कोई भी फोटो को ड्रॉप एंड ड्रैग करेंगे। ठीक है, कोई सी फोटो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाला, हम ये वाला फोटो कर लेंगे, ये फोटो कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना, कोई भी फोटो ड्रॉप एंड ड्रैग करके हम यहाँ पर जो हमारे पास है ये फोटो कर लेंगे। ठीक है, ये फोटो नहीं हो रहा है, इसको बस फ्रेम में ले जाना है। ठीक है ना, तो फ्रेम में ले जाना है, इस फोटो के फ्रेम में ले जाना है। ठीक है ना, ठीक है, इस फोटो के फ्रेम में ले जाना है। ये जो भी फोटो आप, इफ यू वांट टू, जो भी फोटो आप यहाँ पर करना चाहते हैं करते हैं। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने स्लाइड्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो एक एक ये चीज हो गई, ये चीज तो हो गई यहाँ पर उसके बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में, कि फॉर एग्जाम्पल आप क्या करना चाह रहे हैं, आप एक एक रील बनाना चाह रहे हैं, योर स्टोरी क्या कर रहा है, आप एक रील बनाना चाह रहे हैं, मोबाइल वीडियो। ठीक है, एक रील बनाना चाह रहे हैं, आपने कहा कि ठीक है, मैं तो अपना जो रिसर्च टॉपिक है और इस पे एक रील बनाना चाह रहा हूँ, और रील को मैं क्या कर रहा हूँ, रील को मैं सर्कुलेट करूंगा। तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से आप यू कैन यूज दिस। यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट इज ऑल्सो अवेलेबल, बहुत सारे टेम्पलेट्स है यहाँ पर। तो आप चाहे इन टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हैं। और अगर आप इस टेम्पलेट्स का यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, आपको जनरेट वीडियो इंस्टेंटली आपको क्या कर देगा, ये आपको वीडियो इंस्टेंट कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने यहाँ पर क्या किया, जब हमने यहाँ पर क्लिक किया, किस पे क्लिक किया, जब हमने यहाँ पर क्लिक किया, इंस्टेंट वीडियो पर क्लिक किया, तो ये इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। इंटरफेस में क्या करेगा, ये आपसे कहेगा कि आप इसमें ना कुछ अपने पसंदीदा फोटोज को क्या कीजिए, अपने फोटोज को इसमें इंसर्ट कर दिए। तो आप इसमें कोई भी फोटो जो आपको नीडेड है, जो आप चाहते हैं कि उसमें आए, उस फोटो को क्या कर दीजिए, आप इंसर्ट कर दीजिए। और इंसर्ट करने के बाद क्या करेगा ये, फिर आपको देखिए क्या करता है, हमने कर दिया, और हमने यहाँ पर एक टॉपिक लिख दिया। ये टॉपिक क्या क्या लिख दिया, अब हमने ये टॉपिक लिख दिया, इसमें कोई भी हमें वीडियो क्रिएट करना है, जैसे कि वीडियो प्रमोट द कैन ईट ग्लूटेन फ्री फैक्ट्री। जैसे जैसे हमें कोई प्रमोट करना है, क्या किस चीज के बारे में, कोई आपका एक टॉपिक है। ठीक है ना, टॉपिक क्या है, AI, AI एंड एजुकेशन। ठीक है, तो अब हमने ये कर दिया, अब हमने एक टॉपिक लिख दिया। अब हमें टॉपिक के बाद जब हम इसको जनरेट करेंगे ना, तो आप देखिए कि किस तरह से ये जनरेट हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है, आपको जनरेट करने के लिए बहुत सारी मेहनत नहीं करना पड़ेगी, और विद इन 30 सेकेंड और 1 मिनट इट विल बी जनरेटेड। ठीक है ना, बाय AI। तो कैनवा क्या कर रहा है, AI का इस्तेमाल कर रहा है इस सारी चीजों के लिए। तो इस तरह से आप अपने ग्राफ्स को बना सकते हैं, इस तरह से सारी चीजों को बना सकते हैं। ठीक है ना, तो वीडियो, ये जो है, कोई सा भी वीडियो बना सकते हैं, यू कैन यूज द दिस। ये आपको क्या कर दिया, आपको यहाँ पर उसने एक वीडियो क्रिएट करके दे दिया, वीडियो क्रिएट हाउ AI इज द चेंज द वर्ल्ड।
ठीक है ना, यू कैन सर म्यूजिक अपने आप आया है इसमें म्यूजिक? म्यूजिक, म्यूजिक ऑटोमेटिकली को ले लेगा आपका। और आपके जो अकॉर्डिंग जो आप फोटो डाला है ना आपका, और फोटो के अकॉर्डिंग वो क्या कर देगा आपका, फोटो के अकॉर्डिंग आपको क्या कर देगा, आपको ये उसकी स्लाइड्स बना के दे देगा फोटो के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, और इसकी क्वालिटी भी बहुत हाई होती है। वेन एवर यू आर यूजिंग दिस, इसकी क्वालिटी बहुत हाई होगी। ठीक है ना। सर ये सब आप जो दिखा रहे हो वो हम लोग अपने पीसी पे कैसे ले सकते हैं या किसी को फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग आपके इसके इसके ऑडियो को भी कर सकते हैं एडजस्टमेंट, इसके ऑडियो को यूज कर सकते हैं। सर वीडियो ऑडियो। सॉन्ग नहीं आया। मैम, ये चलाते वक्त म्यूजिक की आवाज तो नहीं आई है? अच्छा यहाँ तो आ रही है मैम, उधर नहीं आ रही होगी। आ रही है मैम, म्यूजिक की आवाज आ रही है, नो सर। म्यूजिक की आवाज आ रही है मैम, आ रही है। नो सर। तो म्यूजिक की आवाज आपके पास नहीं पहुंच रही थी मैम? नो सर। अच्छा अच्छा, तो चलो म्यूजिक की आवाज नहीं पहुंच रही होगी, लेकिन ये म्यूजिक भी इसमें होता है। ठीक है मैम, तो इस तरह से ये म्यूजिक भी और मतलब ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा सारे पिक्चर्स के अकॉर्डिंग, आपके पास ये कंटेंट प्रोवाइड करके देगा। देखिए कंटेंट दे सर रहा ये है ना, हम लोग अपने पीसी पे कैसे ले सकते हैं? ये कैनवा में ही रहेगा? कैसे, कहाँ पे है सेव्ड है ये? Canva में तो रहेगा, लेकिन हम ये कह देते फॉर एग्जाम्पल ये शेयर देख रहे हैं, शेयर, ये शेयर का बटन जो दिख रहा है आपको, हाँ जी। हाँ, तो शेयर के बटन पे आप जाएंगे, और शेयर के बटन पे इस पे दो दो तरीके हैं, या तो आप इसका लिंक कॉपी कर सकते हैं, या फिर डाउनलोड का ऑप्शन होता है। जब जो डाउनलोड का ऑप्शन होगा, डाउनलोड का ऑप्शन में आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको क्वालिटी कैसे चाहिए, HD क्वालिटी चाहिए, या इससे ज्यादा क्वालिटी 4K की क्वालिटी चाहिए, या फिर आपको और कम क्वालिटी चाहिए, आपको क्वालिटी कैसे चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वालिटी, आपकी जो क्वालिटी के हिसाब से आप इसको यहाँ पर जो भी जितना भी 730 क्वालिटी है, उसके बाद आपको यहाँ डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद ये क्या करेगा, आप देखिए डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने दीजिए, फिर हम दिखाते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद ये क्या कर देगा आपको, ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है ना। तो डाउनलोड होने के बाद ये आपके किस में चला जाएगा, आपके डाउनलोड फोल्डर में चला जाएगा, और ये डाउनलोड फोल्डर में जाने के बाद आप यहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सर ये डाउनलोड कैनवा लिखा रहेगा, ये वाटरमार्क कैनवा लिखा रहेगा वीडियो में? नहीं, वाटरमार्क कैनवा जब आपके पास प्रीमियम वर्जन होगा तो वाटरमार्क कैनवा नहीं आएगा, जब आपके पास फ्री वर्जन होगा उस पर भी नहीं आएगा। ठीक है, उस पर भी कैनवा नहीं आएगा, क्योंकि जो फ्री वर्जन जो देते हैं ना कैनवा में, वो सिर्फ फ्री वर्जन उन लोगों का देते हैं जो मतलब विदाउट द वाटरमार्क, है ना। तो वहां पर क्या, लेकिन वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप वहां पर ना AI का यूज नहीं कर सकते, है ना। AI का यूज तो कर सकते हैं बहुत सारी, लेकिन बहुत कम जगह AI का यूज करते हैं वो जो, लेकिन जो AI का इस्तेमाल जो करने देता है वो इसमें देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे पास हमने जो ये ना ये यूज किया था, देखिए ये हो गया हमारा डाउनलोड। और डाउनलोड कहाँ होगा ये हमारा, ये आपको दिख रहा है, ये दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। तो डाउनलोड ये हमारे उसमें हो गया। देखिए मैं दूसरा जो आपको शेयर करता हूँ, तो ये ठीक है। तो हमने जो डाउनलोड किया था, डाउनलोड कहाँ किया था हमारा, कहाँ गया वो, अ, ये देखिए हमने जो डाउनलोड किया था, हमारा जो डाउनलोड था वहां पर था।
गूगल में, वो उसमें डाउनलोड में। तो ये पूरा डाउनलोड हो गया। अब ये इसको आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप कैसे भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, आप इसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो साउंड साउंड दिख रहा है, साउंड आ रहा होगा अब तो आपके पास, साउंड आ रहा है आपको, सुनाई दे रहा है साउंड? नहीं नो सुनाई सर। दे रहा है ठीक है। आज मगर कोई जैसे बात नहीं फॉर सर, एग्जाम्पल, कोई बात नहीं। है ना, ठीक है, जैसे कि मैं आप इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ से मेरा मैं खत्म करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर अपने किस पे जाता हूँ, कैनवा वाले पे जाता हूँ, ठीक है। तो कैनवा आ गया। अब इस वाले को जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको, मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको मैं मुझे कहीं पर ही पे पोस्ट करना है, तो यहाँ पर ये आप जैसे कि आपके अपना व्हाट्सएप से मैं भेज रहा हूँ आप लोगों के पास, देखिए व्हाट्सएप के जो ग्रुप है ना अपना, उस ग्रुप पर चला जाएगा ये। तो अब हम ये कहाँ से जाएंगे, डाउनलोड है, डाउनलोड से क्या है हमारा, ये कहाँ गया, मैं आपके पास भेज रहा हूँ, एक मिनट, डाउनलोड से हमारे पास डाउनलोड में था। भेज रहा हूँ मैं डाउनलोड से ना, डाउनलोड से भेज रहा हूँ, तो वो डाउनलोड से वो आपको, तो अब मैंने ये आपको ना, ये पोस्ट कर दिया मैंने, कहाँ पोस्ट कर दिया, अब मैंने ये आपके उस पर पोस्ट कर दिया व्हाट्सएप के ग्रुप पे। तो आप इसके व्हाट्सएप के ग्रुप पर देखना कि किस तरह से ये किस तरह से ये क्रिएट किया गया, किस तरह से क्रिएट किया सर ये है ना। डाउनलोड आपने शेयर में जाके कहाँ किया? आज शेयर में जाके किया है, ठीक है। ये शेयर है ना, या शेयर का जो बटन दिख रहा है, शेयर का जो बटन दिख रहा है, शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ना डाउनलोड आएगा, ठीक है। और डाउनलोड ओके के सर। आप चाहे तो डाउनलोड ना करके ना अपने किसी भी मतलब जो इंस्टाग्राम है और बहुत सारी चीजें, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है, वहां पर डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे आपके है ना उस पर पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप गूगल ड्राइव में ले सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स में ले जा सकते हैं, वन ड्राइव में ले जा सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, ये जो भी आप चाहे, जिसमें भी चाहे, जैसा भी चाहे, व्हाट्सअप है ना। तो सारी चीजों में यूज करते हैं, सोशल मीडिया के इंटीग्रेशन भी है, ये सारी चीजें जो पूरा जो कोर्स होगा उसमें सारी एक चीज दिखाएंगे। लेकिन हम मैंने तो अभी सिर्फ आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन का, तो थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन का पार्ट आज सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आज हमने हमने समझ लिया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम होम पर जाते हैं, होम पे जाने के बाद, होम पे जाने के बाद जो भी आपका प्रेजेंटेशन है, जो भी जो आप बनाना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग द रिसर्च, तो जब रिसर्च हम करते हैं तो रिसर्च में हमें किस चीज की जरूरत होती है, रिसर्च में हमें कोई एक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जो डॉक्यूमेंट्स पे हमें थीसिस या कोई रिसर्च प्रोजेक्ट लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है ना। तो यहाँ फॉर यू ये डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट्स पे क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर है या यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है, इस पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पर। तो इस पे क्लिक करेंगे, और इस पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी जैसे कि मतलब ये डॉक्यूमेंट्स ये आ गया, और जो भी आप यहाँ पर चाहे लिख सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल AI एंड एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। एक ये हमने लिखा, और हम ये चाह रहे हैं कि इसको हमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर वो जिस तरह से जाएंगे और एक्सप्लेन कर देंगे, तो ये क्या कर देगा, AI एंड एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देगा, आपको बता देगा, आपको बहुत सारे हेडिंग्स बता देगा, बहुत सारी चीजें बता देगा आपको। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टाइम ले रहा है ना, ठीक है, ये सर्चिंग कर रहा है कंटेंट को, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से यू कैन यूज योर AI फीचर बोर्ड। देखिए देखिए ये ना स्टाइल क्या कर दिया,
ये सारा उसने यहाँ पर पूरा हमें लिख के दे दिया, हमें लिख के दे दिया, ठीक है। सर एक बार और बता दीजिए कहाँ से आया ये। ये तो आप कैनवा के फ्रंट में जाएंगे ना भाई, कैनवा के फ्रंट में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ डॉक्यूमेंट्स है ना, डॉक्यूमेंट्स जो दिख रहा है, डॉक जो दिख रहा है ना, डॉक जो दिख रहा है ना, डॉक में आप जाएंगे, डॉक में जाने के बाद डॉक को ओपन करेंगे, ठीक है। डॉक को ओपन करने के बाद ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने जो भी लिखा है, जो भी लिखा है वो चीजें यहाँ पर आ गई। लेकिन अब इसको क्या कर सकते हैं, अब आपने कहा कि यार ये जो हेडिंग तो इसने बहुत बड़ी दे दी, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करने के बाद मैजिक जो एआई है, इस पे जाने के बाद इसको क्या करते हैं, शॉर्टन कर सकते हैं। शॉर्टन मतलब इससे ये क्या कर देगा, आपकी जो कंटेंट को शॉर्ट कर देगा, है ना, शॉर्ट कर देगा। देखिए ये कैसे शॉर्ट करता है, वो सारे हम लोग पूरा जब इन ग्राफिक्स पढ़ाएंगे वो सारी चीजें हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके सारी चीजों के बारे में, ठीक है, ठीक है। शॉर्ट कर दिया आपको, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि ये जो शॉर्ट हुआ है ये और ज्यादा शॉर्ट हो, तो फिर आप इसको कंटेंट को कर दीजिए। कंटेंट करने के बाद क्या कर देगा, ये जो मैजिक एआई, मैजिक जो राइटर है ना, ये और शॉर्टन कर देगा। ठीक है, और शॉर्ट इसी तरह से आप इसको इसका भी कर सकते हो, इसको मोर एक्सपेंड भी कर सकते हो, ठीक है। इस आपने कहा कि नहीं मुझे और, तो आप क्या कर सकते हो, मोर एक्सपेंड कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, रीराइट कर सकते हो। वो सारी चीज में अवेलेबल है, जो भी अगर आप जो अपने रिसर्च का डॉक्यूमेंट बना रहे हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें है कि जो हम कैनवा का यूज जब करते हैं, तो जो भी कंटेंट है ना, तो क्लाउड में सेव होता है। आप लिख रहे हैं, लिखते टाइम आपके किसी में कोई प्रॉब्लम आ गई, आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ गई और शट डाउन हो गया, बंद हो गया, तो पता चला जो आपका जो आपका कंटेंट है वो यहाँ से गायब हो गया। लेकिन ये क्या करता है, वो कंटेंट आपका गायब नहीं करने देता, बल्कि ऑटो सेव करता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये करता है, ऑटो सेव करता है। तो देखिए, और उसने क्या कर दिया, और उसने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना, एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेन करने के बाद क्या करने का, हमने कहा ठीक है, ये जो भी हमारे पास कंटेंट है, इसको कंटेंट है, हम इसको क्या करना चाहते हैं, हम इसको इसकी जो इसको हम रीराइट करना चाहते हैं। तो ये हमने रीराइट कर दिया, तो ये आपको रीराइट करके दे देगा, है ना। ये कंटेंट को क्या करके दे देगा, आपके रीराइट करके दे देगा कंटेंट में। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन ये क्या कर देगा, आपके कंटेंट को रीराइट कर देगा, है ना, दोबारा से लिख देगा अपने कंटेंट को। तो ये सारे फीचर्स है, ठीक है। तो ये आज का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में तो हम लोग सिर्फ थोड़ा सा शुरू शुरू का बताएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा और कल से हम थोड़ा सा सिस्टम बाय स्टेप बाय स्टेप, देखिए ये पूरा उसने रीराइट करके दे दिया, ठीक है ना, रीराइट करके दे दिया। तो ये इस तरह से ये डॉक्यूमेंट काम करता है, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पर, अब हमने फिर से होम पे गए, फिर से होम पे गए, और जब फिर से होम पे गए हमने, अब जो भी चाहिए हमें, जो भी हमें रिज्यूम राइटिंग का चाहिए, व्हाइट बोर्ड चाहिए, हमें मोबाइल वीडियो चाहिए, हमें प्रेजेंटेशन चाहिए, हमें स्टोरी चाहिए, ठीक है ना, हमें इंस्टाग्राम पोस्ट चाहिए, हमें पोस्टर चाहिए पोर्ट्रेट में, हमें यूट्यूब थंबनेल चाहिए, हमें लोगो चाहिए, हमें पोस्टर चाहिए, इनवॉइसेस चाहिए, हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हमें जो भी चाहिए आपको, हमें इस तरह का वीडियो चाहिए, ठीक है। ये इस तरह का वीडियो चाहिए, ब्राउचर आपको बनाना है, फ्लायर आपको बनाना है, लिंक्डइन वीडियो बनाना है, ठीक है, बुक कवर पेज का बनाना है, कैलेंडर बनाना है, डॉक्यूमेंट्स है, ये क्या फेसबुक कवर है, ठीक है, ईमेल हेडर बनाना है आपको, फोन वॉलपेपर बनाना है, सारी चीजें अवेलेबल हियर, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग कल से तैयारी करेंगे इसकी, ठीक है ना। और आज हम जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने आज थोड़ा सा ये समझ लिया कि ये क्या होता है, ठीक है, और यहाँ पर सर्च योर कैनवा कंटेंट, आपका जो कैनवा कंटेंट है आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, यू कैन सर्च योर कैनवा कंटेंट फ्रॉम मी हियर, ठीक है। टेम्पलेट है, प्रोजेक्ट है जो आपने बनाए हैं उसके बारे में ना, अनटाइटल आप टेम्पलेट्स है जो भी आपने बनाए, जैसा भी बनाए, ठीक है, उसके बारे सर में आप जी। सर जैसे हम लोग कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 4 या 5 लोग उसमें देख सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हमने इसका प्रो वर्जन लिया तो कितने यूजर्स इसको एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें मैम एक्चुअली टीम का होता है। आप टीम के लिए ना कितने भी 10 टीम 15 लोग 20 लोग कोलैबोरेशन टीम में कर सकते हैं, कि मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर कहाँ है।
देखिए ना, ये दिख रहा है ना, इनवाइट द मेंबर्स, इनवाइट द मेंबर्स लिख लिया ना, तो जितने भी मेंबर्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर लिखना है ना कि इनवाइट द पीपल टू योर ड्रीम, वंस पीपल ज्वाइन योर ड्रीम यू विल स्विच टू द कैनवा टीम। तो ये क्या करेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि यार ये जो हम किसी भी अपने मेंबर्स को इनवाइट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो ये क्या करेगा आपसे, जैसे मेरा जो सब्सक्रिप्शन है ना, सब्सक्रिप्शन कहेगा, सब्सक्रिप्शन कहेगा कि जब आप टीम, जैसे कि अगर हमने लगा कि हमने इंडिविजुअल के यूज के लिए कह रहे हैं, तो जब हम इंडिविजुअल यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब जब हम इसको टीम में यूज करेंगे ना, जो टीम में यूज करेंगे, तो वो ये क्या कर देगा, ये कहेगा कि 444 रुपये और आपको देना है, तब आप इसका टीम का यूज कर सकते हैं। इनवाइटेड पीपल योर टीम, ठीक है। तो आप कितने लोग यूज करते हैं, लेकिन लेकिन आप ये क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आप चाहते हैं कि आपकी टीम, आपकी जो आप है, आप यूज कर रहे हैं, है ना, आपकी फ्रेंड को यूज करना, तो आपके फ्रेंड को आप अपना ईमेल दे सकते हैं, तो उससे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहती हैं कि नहीं नहीं, मैं तो अपने अपने फ्रेंड्स को अपना ईमेल नहीं दूंगी, मैं तो अपने अकाउंट से नहीं इसको यूज कर पाऊंगी, तो क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, उसको टीम मेंबर, इनवाइट द टीम मेंबर करना है। और इनवाइट टीम मेंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको करना है टीम मेंबर्स में एडमिनिस्ट्रेटर है, ब्रांड डिजाइनर है, मेंबर्स है, कौन है, ठीक है। मेंबर्स को ज्वाइन कराना है, किसको ज्वाइन कराना है, और जब आप ज्वाइन कराएंगे यहाँ पर, तो इनवाइट पीपुल क्या करेगा वो, ठीक है ना, आपको फिर वो कहना कहेगा आपसे कि आप इसमें क्या कीजिए, इसमें आप और पैसे ऐड कीजिए तभी, ठीक है, ठीक है। क्या कहेगा आपको, आप इसमें मेंबर्स को ज्वाइन कराना चाहते हैं, किसी को भी ज्वाइन कराना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उसको आपके लिए 446 रुपये जो सब्सक्रिप्शन होगा, यानी 4,000 का जो सब्सक्रिप्शन होगा, उसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, इतना पैसा देना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि सब्सक्रिप्शंस का जो रेट है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ ना यहाँ पर लगा प्लान्स एंड प्राइसिंग, प्लान्स एंड प्राइसिंग लगा, ये तो प्रो का है, ये क्या है, ये प्रो वर्जन है। प्रो वर्जन का क्या है, अब स्टार्ट योर फ्री ट्रायल्स, फ्री ट्रायल्स दे रहा है, ठीक है ना। देखिए ये दिया है, देखिए कैनवा फ्री वर्जन का कुछ नहीं है, जीरो है। कैनवा प्रो का 4,000 रुपये पर ईयर फॉर 1 पर्सन, ठीक है ना, ईयरली दे रहा है, ईयरली, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, 33% सेव है, 4,000 का दिया, पहला हमने तो ज्यादा का खरीदा था, ठीक है। गेट स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट फ्री, स्टार्ट ए ट्रायल, ट्रायल दे रहा है आपको, ये है ना, ट्रायल भी यूज कर सकते हैं। अब ये क्या, अनलिमिटेड प्रीमियम अपडेट्स, 100+ पोस्ट फोटो, ये क्विकली रिसाइज ट्रांसलेट, ये सारी चीजें आपको, 1 TB क्लाउड स्टोरेज, ऑनलाइन कस्टम, 1 TB क्लाउड स्टोरेज, आप समझ रहे हैं कितना हो गया, है ना, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा हो गया, तो आप ये इसका सब्सक्रिप्शन अगर आप चाहते हैं कि मंथली मुझे चाहिए, तो मंथली में क्या करेगा, ये आपसे कह रहा है कैनवा प्रो मंथली क्या है, आपको 500 रुपीज पर मंथ आपको देना पड़ेगा, ये बस ये वाला सब्सक्रिप्शन मिल जाए, ठीक है। सर, जी, इसमें ना फ्री में एआई देता है, प्रो में एआई नहीं लिखा है। नहीं, इजी टू ड्रैग 1 मिलियन प्रोफेशनल AI जनरेट, नहीं AI देता है इसमें, प्रो में तो देता है, इसमें लिखा नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन ये सारे फीचर, जो सारे फीचर्स जो है ना, सारे फीचर्स जो इसके अलावा, ये सारे फीचर्स इसके एक्स्ट्रा फीचर्स देता है इसमें, हो सकता है लिखा नहीं हो, लेकिन जो मैं तो आपको प्रो का बता रहा हूँ ना, प्रो में तो AI देगा। देखो ये दे रहा है ना, बूस्ट क्रिएटिविटी विद द 20+ AI टूल्स, ये दे रहा है, देखो, बूस्ट क्रिएटिविटी विद द 20+ AI टूल्स, हाँ, ओके, थैंक यू। ठीक है। तो इसमें तो AI जनरेटेड राइटिंग एंड डिजाइन में देता है, वो ज्यादा नहीं दे रहा है इसमें, इसमें लेकिन फुल दे रहा है, 20+ AI टूल्स दे रहा है ना, 20+ AI टूल्स के बारे में भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसके बारे में क्या, इंडिविजुअल्स के बारे में होगी प्राइसिंग। अब हमने कहा कि ठीक है, इसके इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है, टीम, टीम क्या कर रहा है, टीम का कितना पैसा है, टीम का आ जाए, तो टीम का क्या कर रहा है, ये टीम वर्क क्या कर रहा है, टीम वर्क के लिए आपको पास कितना देना पड़ेगा, टीम वर्क के लिए आपको आपको क्या करना पड़ेगा, ये कैनवा टीम के लिए 3,800, इन ट्रांसफॉर्म टीम ग्रो योर सिंप्लीफाइज 3,800 ईयर पर पर्सन, ठीक है ना, मिनिमाइज 3 पीपल 11,000
400 ईयर्स फ्री ट्रायल, ठीक है ना। तो इसमें ये सारी चीजें कैनवा एंटरप्राइजेस के बारे में भी दे रखा है। ये सारी चीजें आपको क्या है, स्केल योर ब्रांड कस्टमाइज, ये सारी चीजें पे है, 1 TB क्लाउड स्टोरेज ये है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कैनवा टीम के बारे में देगा, फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर योर टीम, ठीक है। मंथली कितना है, मंथली इसमें देगा मंथली 380 रुपये, ठीक है इसमें। और ठीक है, तो ये सारे सब्सक्रिप्शन पे अवेलेबल है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है और, एंटरप्राइजेस हो गया, कैनवा एंटरप्राइजेस। कैनवा एंटरप्राइजेस के बारे में, वो कंपनी कंपनी का होता है, उसमें आपको ज्यादा चक्कर की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और इसके बाद में बता दिया उन्होंने, एजुकेशन के बारे में मैंने बता ही दिया, एजुकेशन नॉन फॉर प्रॉफिट। तो इसके बारे में क्या कर रहा है, ये सब आपको फ्री में प्रोवाइड कर देगा अगर आप टीचर्स है, ठीक है ना। तो ये आपको फ्री में प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो आज ये हो गया। अब हम देखो, जैसे आप एज ए ट्रायल के लिए हम लोग आज जो आप एक थोड़ा हैक वाली है, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कभी भी, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए आप जो कैनवा का जो प्रो वर्जन है वो कैसे कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल आपने कहा, आपने यहाँ पर लिखा बिंगो टिंगो, ठीक है। आप बिंगो टिंगो के इस बिंगो टिंगो की एक वेबसाइट है, इस पे बिंगो टिंगो पे क्लिक किया या बिंगो टिंगो पे क्लिक किया, ठीक है। बिंगो टिंगो पे क्लिक करके, ठीक है, बिंगो टिंगो क्लिक करके आप सबसे नीचे गए, देखिए यहाँ पर ना बिंगो टिंगो की जो एक, ये जो मैंने बताया ना आपको, बिंगो टिंगो वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये वाली जो है ना, इस पे मैं आपको इसको कॉपी कर दे रहा हूँ, कॉपी करके ना इसको मैं उस पे कर दे रहा हूँ, ग्रुप पे मैंने सेंड कर दिया है। ग्रुप के अलावा, ग्रुप के अलावा चैट पे भी, ठीक है, चैट पे भी कर दिया। तो इस पे आप जाएंगे, जाने के बाद क्या क्या, बिंगो टिंगो जो है ना, बिंगो टिंगो, बिंगो टिंगो जाएंगे, और बिंगो टिंगो पे जाके ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसने कुछ टाइम दे रखा था, 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट आपको वेट करना है, जो 1 मिनट था यहाँ पर, 1 मिनट करने के बाद ये डाउनलोड आएगा। तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा यहाँ पर। तो यहाँ बिंगो टिंगो,
देखिए ये टाइम दिखा रहा है यू गेट, है ना, ये टाइम जो दिखा रहा है, इस टाइम में आपको क्या करना है, ये टाइम में आपको वेट करना है यहाँ पर। तो आपको 1 मिनट वेट करना है। 1 मिनट वेट करने के बाद ये डाउनलोड का ऑप्शन दिखाएगा। देखते हैं ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो आपको एक एक मिनट कम से कम वेट करना है, क्या? 1 मिनट वेट करने के बाद ये डाउनलोड का ऑप्शन दिखाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, डाउनलोड का ऑप्शन दिखाएगा, आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है। तो अब ये जो आ रहा है ना यहाँ पर, गेट हियर फॉर फ्री सीओ, गेट हियर पे आपको क्लिक करना है। ठीक है ना, तो गेट ईयर पे क्या करेगा ये, आपको आपको कहाँ ले जाएगा, ये आपको स्टार्ट क्रिएटिंग, तो आपको ये वहां पर डायरेक्टली आपके कैनवा में ले जाएगा, और कैनवा में ले जाने के बाद आप यहाँ पर क्रिएट डायरेक्टली, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, ज्वाइन करने के बाद आपको क्या कर देगा ये, आप यू कैन यूज द प्रो वर्जन फ्री। ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ से इसको एक्चुअली लॉग आउट कर दूंगी, और मेरा प्रो वर्जन जो है यहाँ से लॉग आउट। मैंने ये लॉग इन किया है इस वाले में, इससे कहता हूँ ये क्या कहता है। हाँ, आप देखिए जो मेरा जो ये मैंने यहाँ पर जो एक अकाउंट बनाया था, उस अकाउंट पे हम ये कर, अब हमने कहा गेट स्टार्ट का, तो गेट स्टार्ट में क्रिएटिंग स्टार्ट यहाँ पर किया। तो स्टार्ट करने के बाद देखिए ये खुल गया हमारा प्रो वर्जन। प्रो वर्जन क्या है, जो हमारा जो यहाँ पर इन्फो भारत डिजिटल एकेडमी से हमने ये क्रिएट किया था यहाँ पर प्रो वर्जन। प्रो वर्जन का मतलब ये होता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर जो ये ताज दिख रहा है ना, ये प्रो वर्जन है। अब सिंपल वर्जन में नहीं दिखेगा, ये सारे प्रो वर्जन है, प्रो वर्जन है। तो आप क्या कर सकते हैं, प्रो वर्जन पे जाके आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज दिस टेम्पलेट। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से कोई भी टेम्पलेट कैसे दिखाता हूँ, एलिमेंट डिजाइन दिखाता हूँ। ये हमने किस चीज का डिजाइन खोला, हमने यहाँ से देखिए ये रिसाइज, ये जो दिख रहा है ना, तो अब ये सारे जो वहां पर हम लोग प्रो वर्जन में यूज कर सकते हैं, यहाँ पर सारे वर्जन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करना, आप समझ में आएगा। तो हम ये क्या करते हैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हम, क्वेश्चन है, जी, अगर हम ये इस तरह से प्रो यूज करते हैं तो ये जैसे कि यहाँ पे किसी आपका अकाउंट दिखा रहा है तो हमारे डेटा क्या आप भी देख सकते हैं? नहीं देखिए ये जो टीम वाला जो होता है ना, टीम वाला, ये एक्चुअली जी करते क्या है, जो हैकर्स होते हैं ना, हैकर्स जी करते क्या है, उन्होंने एक एजुकेशन का अकाउंट ले लिया, गठजोड़ करके जो ना। ठीक है, तो जी। ये देखो यहाँ हाँ पर जो दिखा रहा है ना आपको टीम्स थ्री हाँ। सिक्स, यहाँ पर जैसे ही 500 होगा ना, जैसे ही 500 ने हम्म, जो ग्रुप ज्वाइन कर लिया, तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, आपके आपका जो जो फ्री वर्जन वाला सिस्टम है आपका खत्म कर देगा बिल्कुल। तो फिर ओके ओके। को करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये कोई स्टेबिलिटी नहीं है इसमें। स्टेबिलिटी कहाँ है, जो आपका जो मतलब ओरिजिनल वर्जन होगा। तो ये जैसे जो हमने जो यूज किया है ना, तो ये जो टीम वर्क है ना, टीम वर्क में देखो ये जो कितने लोग, ये जो है ना, ये जो चार्ली बिस्टन ने ये वाला उसके नाम से अकाउंट है, और ये उसके अकाउंट में जो भी आप क्रिएट करेंगे वो उसके अकाउंट में टीम वाले को कुछ थोड़ा बहुत दिखेगा। ठीक है ना, सारी चीज दिखेगा, है ना। तो कहने का मतलब इस हम्म। तरह से हमने फॉर एग्जांपल अब जैसे कि हमने यहाँ पर कोई भी, हम लोग क्या है, कहाँ गया, यूट्यूब थंबनेल्स लोगो सर्टिफिकेट योर स्टोरी, ये तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर क्या करना है,
तो इंस्टाग्राम पोस्ट हमने एक कोई कर लिया ना, तो अब हम इंस्टाग्राम से पोस्ट से कहते थे कि यहाँ से ना फ्री वर्जन में क्या कर देगा ये। अब हमने उससे ये कहा ठीक है, हमने कहा इससे ये हमें एक 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 इंस्टाग्राम पोस्ट है भारत डिजिटल एकेडमी जो हमें क्या कर रही है, इनवाइट कर रही है। तो ये क्या कर देगा, देखो आपको ना भारत डिजिटल एकेडमी का जो है ना, ये प्रो वर्जन में उन्होंने सारी चीज बना के दे दी है। देखो ये इस तरह का एक पोस्ट बना के दे दिया, यू कैन यूज दिस पोस्ट ऑल्सो, ठीक है ना। ज्वाइन अस फॉर द कैनवा वर्कशॉप, है ना, डिजाइन में बना के दे दिया। उसके बाद आपने यहाँ पर ऐड किया, और उसके बाद दूसरा डिजाइन किया, दूसरा डिजाइन आपको ये बना के दे दिया, ज्वाइन अवर द कैनवा वर्कशॉप फॉर अ डे, पूरा सारा मैटर लिख दिया उसने, ठीक है ना। और उसके बाद आपका और देखिए ये दे दिया आपको, देखिए बना के आपको, है ना, ये बना के दे दिया आपको, है ना। इसके अलावा आपको क्या कर दिया, और ये देखिए इस तरह का बना के दे दिया आपको, है ना। बहुत सारे डिजाइन आपको क्या कर दिया, बहुत सारे डिजाइन आपको इस तरह के कैनवा से रिलेटेड, है ना, इस तरह के आपको अनलॉक योर क्रिएटिव विद द कैनवा वर्कशॉप अटेंड भारत डिजिटल एकेडमी। बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत सारे आपको कंटेंट प्रोवाइड करके दे दिए बिना उसके, देखिए, ठीक है ना। तो ज्वाइन अस फॉर द एक कैनवा वर्कशॉप, तो ये इस तरह से भी दे दिया, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या है, और देखिए ये सारी चीजें आपको बना के दे दी है। और ये क्या, ये प्रो वर्जन में है, सारे प्रो वर्जन में, सब कुछ प्रो वर्जन में है, ये कोई वैसे वर्जन में नहीं है, ठीक है। तो आप इसको एनिमेटेड भी कर सकते हो, ठीक है ना, एनिमेटेड भी कर सकते हो इसको आप, है ना, किस तरह से भी एनिमेटेड कर सकते हो। तो ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको मैंने ये लिंक शेयर किया है ना, जो लिंक शेयर किया ना, लिंक शेयर पे जाके ना आप इसी तरह से आप करना है। करना क्या है एक बार और बता देता हूँ मैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कहाँ जाना है, आपको आपको गूगल पर जाना है, आपको गूगल पर जाना है, ठीक है। यहाँ लिखना है, वो तो मैंने लिंक भेज ही दिया है अब आपको, लिखना है बिंगो टिंगो, ठीक है, बिंगो टिंगो फॉर कैनवा, ठीक है। यहाँ पर एक ये वाला आएगा, बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आएगा फ्री गाइड, उसके नीचे आएगा यू कैन गेट द फाइल इन 50 जो भी 1 मिनट का टाइम लगेगा आपको, 1 मिनट के अंदर आपको ये डाउनलोड करने के लिए ऐप बताएगा कि आप यहाँ से डाउनलोड कीजिए, ठीक है ना। क्या कीजिए आप यहाँ यहाँ से डाउनलोड कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद उसके वो इसलिए करता है कि जो बिंगो टिंगो ना थर्ड पार्टी वेबसाइट है, ये अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहा है सारा, ठीक है ना। तो अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, और अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको 1 मिनट कह रहा है कि अगर आपको ये यूज करना है, ये सीखना है, ये करना है, तो आप 1 मिनट आपको रुकना पड़ेगा इसमें, ठीक है। 1 मिनट रुकने से क्या होगा, बिंगो टिंगो का क्या होगा, बिंगो टिंगो का रेट बढ़ेगा ना, टाइम बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ से देखिए ये पूरा 1 मिनट उसने अपनी वेबसाइट, ये कोई भी बंदा आएगा बिंगो टिंगो का अगर यूज करता है, तो उसको अप्रोक्सीमेटली कम से कम 1 मिनट यहाँ पर रुकना पड़ेगा, ठीक है। 1 मिनट रुकने के बाद यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर आएगा। तो इसमें 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 चार्ली बिस्टन क्रिएटिव स्टूडियो, चार्ली बिस्टन नाम का बंदा है जिसको आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यू गेट फ्रॉम यर, यहाँ से गेट फ्रॉम यर जो कर सकते हैं, यहाँ आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपसे कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे तो क्या कर देगा, क्या कर देगा आपको, क्या कर देगा ये आपको डायरेक्ट कैनवा पर ले जाएगा, और कैनवा प्रो को क्या कर देगा आपको, आप यू कैन यूज द कैनवा, ठीक है ना। तो अब दोबारा तो करने की जरूरत नहीं है। अब ये कैनवा प्रो है, ठीक है। कैनवा प्रो देखिए ये आ गया, सारा यूज हो गया कैनवा प्रो। कैनवा प्रो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैनवा प्रो का हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई भी ये जो खोला, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो
ये ताजमहल आ रहा है ना प्रो वाला, तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इसको क्लिक करने के बाद ये सारा आ गया। अब हमें क्या होगा, जो हमारा जैसे ये टेम्पलेट है, अगर टेम्पलेट खुल जाता है और टेम्पलेट खुलने के बाद अगर हम उसको कुछ करते हो तो फिर यहाँ पर जो वाटर मार्क अगर हम करते हैं वाटर मार्क दिखाएगा। लेकिन आपका जब कैनवा का होगा, जब प्रो वर्जन होगा, तो आपका ये क्या कर देगा, आपको ये कैनवा का वो नहीं दिखाएगा। PNG हम यूज करते हैं, डाउनलोड कर दिए तो आपको किस तरह का वाटरमार्क नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये वाटरमार्क नहीं दिखाएगा, तो ये क्या है, तो हमने क्या कर दिया, एक इसको हमने एक फोटो फोटो हमने वो कर दिया। तो यहाँ पर जो डाउनलोड होगा, ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड हो गया, ये क्या हो गया, डाउनलोड हो गया। ये मेरी स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे इसलिए नहीं दिख रहा है, इसको शेयर करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम लोग शेयर कर लेते हैं, शेयर करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग शेयर कर हटाते हैं। हमने यहाँ पर ये वाला डाउनलोड किया। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने क्या किया, डाउनलोड किया था। तो इस तरह से हम लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो आई थिंक it is okay. If you have any questions, you can ask, otherwise we will end it. No questions from me, sir. Thank you so much. जी Sir, मैम, यस यस। sir, as like we are having a events in our university or colleges, we are supposed to make a certificates in bulk, like 40 certificates in hand, 50 बहुत अच्छा, certificates. बहुत So, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना, तो अभी so हमें करना क्या है, अब हमें करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल जो बल्क में सर्टिफिकेट क्रिएट करना है। ठीक है ना, तो बल्क में सर्टिफिकेट क्रिएट करना है आपको। Zoom का अच्छा, ठीक है, बल्क में सर्टिफिकेट आपको क्रिएट करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग कैनवा में ही है ना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बल्क में सर्टिफिकेट क्रिएट करना है। तो हमें यहाँ पर ना, जैसे क्रिएट सर्टिफिकेट, ठीक है, अब क्रिएट सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट में बहुत सारे टेम्पलेट है। आप यहाँ पर कोई भी सर्टिफिकेट ले लिया आप। ठीक है ना, तो सब सर्टिफिकेट ले लिया, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है। ऑप्शन क्या होता है, बल्क क्रिएट का ऑप्शन आता है। ठीक है, बल्क क्रिएट है। अब बल्क क्रिएट में क्या करेंगे कि हमारे पास दो चीजें हैं, इंटर डाटा मैन्युअली और अपलोड डाटा। तो जो अपलोड डाटा है, अपलोड डाटा में ये कहेगा आपसे कि आपके पास क्या होना चाहिए, सीबी एक्सेल सीबीसी या कुछ भी होना चाहिए। तो हमारे पास जब कोई मतलब फाइल होगी, हम लोग यहाँ पर उसको क्या कर लेंगे, हम लोग इसको यहाँ से अपलोड कर लेंगे। ठीक है ना, तो उसमें जो भी कॉलम आपको चाहिए होते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम क्या करते हैं, इसको हम लोग मैन्युअली करते हैं। मैन्युअली कैसे करते हैं, जैसे कि हमने एंट्री डाटा मैन्युअली, तो इस तरह की एक टेबल आ जाएगी, टेबल आ जाएगी। हमने यहाँ से कहा कि ठीक है, ये हमारे नाम है। the name and name of the organization you can take two अभी options. अभी अभी मैं बताता हूँ आप, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि ठीक है, हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया नेम,
ठीक है, अब हमने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन नेम, ठीक है, ऑर्गा डाल दिया, कुछ भी डाल दिया। ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन नेम इज, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नेम इज, ठीक है ना। अब ऑर्गेनाइजेशन नेम, अब इस ऑर्गेनाइजेशन नेम के अलावा आपने कहा कि सर्टिफिकेट का नंबर भी देना है मुझे, ठीक है, सर्टिफिकेट का नंबर। और सर्टिफिकेट का नंबर है, सर्टिफिकेट का नंबर जो भी आप मैन्युअली कर दे, एक लिस्ट बना लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई लिस्ट बना देते हैं, लिस्ट कितने हैं? 8 लोग हैं, 8 पीपल, ठीक है ना, हम लोग लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पर, हमने सर्टिफिकेट नंबर ये डाल दिया। अब सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद हमने ये जो डाला है ना, इसके बाद ये हमने डन कर दिया। डन करने के बाद अब हमें देखना है कि हमें इस कोर्स में, इसमें लेना क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर नेम लेना है, तो कनेक्ट डेटा आ रहा है ना, कनेक्ट डेटा पे किया, तो यहाँ पर जो आपने जो जो भी डेटा फीड किया है वो यहाँ पर कनेक्ट डेटा में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने नाम फीड किया है, नाम आ जाएगा। आपने, जैसे कि आपने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई एक कॉलम बना लीजिए आप, जैसे कि आपने और ऑर्गेनाइजेशन की का नाम क्या है, ठीक है, तो आप यहाँ पर कनेक्ट डेटा करके ऑर्गेनाइजेशन डाल दीजिए, ठीक है ना। और आपने यहाँ पर कोई कहा है सर्टिफिकेट का नंबर, ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर दिए, यहाँ कर दिए सर्टिफिकेट का नंबर डाल दिए। तो अब यहाँ कर दिए, क्या कर दिए, यहाँ एक कनेक्ट कर दिए सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अभी जब आप कनेक्ट करेंगे तो यह कंटिन्यू पे करना है आपको। कंटिन्यू करने के बाद इसने ये बता दिया कि 8 जो एंट्री की थी आप, और अगर आप ऑल को सेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर इसमें से कुछ को सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, हमने कहा ठीक है ऑल को सेलेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इट विल बी क्रिएट द ऑल बल्क ना, ठीक है। आपको ना उसने क्या कर दिया, जो 8 सर्टिफिकेट थे, तो 8 सर्टिफिकेट आपको उसने क्रिएट करके दे दिए, यूनिवर्सिटी का नाम आ गया, ठीक है ना, और सर्टिफिकेट का नंबर आ गया यहाँ पर, ठीक है ना, सर्टिफिकेट का नंबर आ गया, जो भी सर्टिफिकेट का आप नंबर देना चाहते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी सर्टिफिकेट या बल्क पोस्ट भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट द बल्क पोस्ट एंड सर्टिफिकेट ऑल्सो, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या है, डुप्लीकेट कर सकते हैं, इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, इसको अगर कुछ नया चाह रहे हैं तो नया कर सकते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ से हम लोग जो भी है आपका, जैसे कि अगर सर व्हाट आपको इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर द सर्टिफिकेट? मैक्सिमम रेट जितने भी आपके पास हो मैम, जितना भी हो, कोई टेंशन नहीं है इसमें। जब पेड वर्जन आपके पास होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। यहाँ से हम इसको लॉक कर सकते हैं, ठीक है, लॉक हो गया ये आपको यहाँ से लॉक एंड कर। फॉर एक्सपोर्ट सेम प्रोसीजर, शेयर एंड देन डाउनलोड। हाँ बस बस बस। सर थैंक यू सो मच, वंडरफुल सेशन। और अभी इसमें ये क्या है, और क्या था आपका, कहाँ गया जूम, कहाँ गया। तो हम लोग क्या कर रहे थे, ठीक है, हम लोग यहाँ पर इसको हमने ये देखा। अब इसके अलावा ये तो हो गया, ठीक है, स्टॉप, ठीक है। तो फिर अब इसमें क्या है, तो ये वाला तो हो गया खत्म। अब कोई और क्वेश्चंस किसी का हो तो उसमें चाहते हैं। अच्छा एक चीज और मैं आपको ना क्या करता हूँ, एक जरा मैं आपको यहाँ पर ना अपने सोशल मीडिया के लिंक्स शेयर कर रहा हूँ, तो आप ऐसा कीजिएगा, है ना, कुछ सोशल मीडिया के लिंक है, तो आप अपना उसमें फीडबैक भी दे दीजिएगा। और हमारे जो चैनल से यूज कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल भी अगर आप चाहें ना,
जैसे आपको अपडेट चाहिए है ना, सारे जो हमारे पास जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनकी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह का आपको अपनी नॉलेज के लिए सर ठीक है ना, तो सर आप जैसे सर अभी हमारे यहाँ नैक की विजिट हुई थी, तो हमें पोस्टर्स बनाने थे, फ्लायर्स बनाने थे। तो उनका ना जब हम प्रिंट के लिए बोला तो उन्होंने कहा कम से कम आपका 1000 मेगापिक्सल होना चाहिए। फिर हम मेगा, गूगल पे एक एक जाके सर्च कर रहे थे, तब कहीं जाके हमने वो प्रिंट निकलवा पाए फ्लायर के। अभी अभी मैं बता रहा हूँ उसका, भी बता रहा हूँ आपको। अभी ये क्या था, तो मैंने मैम ये जो है ना आपको कुछ सोशल मीडिया के लिंक्स जो है ना हमारे वो पोस्ट किए हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर ले, ये कर ले, जो भी चाहे ठीक है ना कर सकते हैं यहाँ पर हमारा। इसमें इसमें ये जो एक चीज इंपॉर्टेंट ये वाला जो है ना, इसको जरूर अपना ना अपना एक रिव्यू जरूर दे दीजिएगा कि आपको ये लगा कैसा, आप कैसे, क्या था इसमें, क्या बेनिफिट है ना। तो गिव योर रिव्यू ऑन गूगल लिंक, इस पे जरूर दीजिएगा। तो अब आप जो बता रही हैं, आप क्या कह रही थी इसमें, अभी जरा बताइए मैम प्लीज दोबारा से। सर हमें ना अभी नैक की विजिट हुई थी, तो वॉल पे ना बड़े बड़े पोस्टर्स लगवाने थे हमें, फ्लायर्स एंड ऑल। तो जब हमने गूगल से पिक्स ली, तो उन्होंने जो हम प्रिंट के लिए गए कि भाई हमें 7 फुट बाय 8 फुट का चाहिए, 4 बाय 6 का। तो हाँ उन्होंने तो बोला पिक्सल छोटा है, 1000 पिक्सल का चाहिए कम से कम। देखिए मैं बता दूंगा आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब फिर से शेयर करना पड़ेगा कैनवा। कैनवा को हमने शेयर किया, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई पोस्टर बना क्रिएट करना है, पहले तो इसमें जो फोटोग्राफ्स होते हैं ना मैम, बहुत ज़्यादा होता है, कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई पोस्टर बनाना है, पोस्टर का क्या किया, पोस्टर पोस्टर पोर्ट्रेट, पोस्टर, लोगो, मोबाइल। देखिए यहाँ से आपने क्रिएट डिजाइन किया, यहाँ पोस्टर होगा, अभी मैं बता रहा हूँ वहाँ भी होगा। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट पोस्टर, ये ना, ये जा रहा है ना पोस्टर आपको, ये पोस्टर पे क्लिक कर दीजिए आप। ठीक है, तो ये इस तरह का पोस्टर है। हमें आपको लंबा बनाना है या ऐसा बनाना है, वो साइज आप दे देंगे तो वो बन जाएगा उससे ना। तो ये क्या करना होता है, देखिए ये जो जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ये सिर्फ आपको प्रो वर्जन में फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ से ना इसको रिसाइज करना है, आपको ये करना है कि भी इसका मुझे करना क्या है। आपको यहाँ से इंस्टाग्राम बनाना है, इंस्टाग्राम पोस्ट का ये साइज है, पिक्सल दे रखा है, ठीक है, फेसबुक का पिक्सल दे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जाना है। ये तो वैसे तो रेडीमेड ही आपको दे रखा है किसके लिए क्या करना है, किसके लिए क्या करना है। अब यहाँ से कस्टम साइज पे जाना है। तो कस्टम साइज पे आपसे ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल आपने ये कहा कि ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, आपको सेंटीमीटर में चाहिए, इंच में चाहिए, एमएम में चाहिए, पिक्सल में चाहिए। अब पिक्सल है, अब ये वाला जो ये जो पोस्टर है, पोस्टर का साइज क्या है, 1582 और 2223 पिक्सल्स है। ठीक है ना, हाइट्स इसकी ये है, width ये। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इसका 2000 पिक्सल इसकी विथ हो, और 3000 इसकी हाइट हो, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट ईयर। ठीक है, तो अब इसमें दो ऑप्शन है, ये कहेगा कॉपी एंड रिसाइज, यानी कॉपी मतलब दूसरा एक विंडो खोल देगा, या फिर कहेगा रिसाइज दिस डिजाइन, या वो इस डिजाइन को रिसाइज कर देगा। तो इसने इस डिजाइन को रिसाइज कर दिया, तो इस डिजाइन का क्या हो गया, इस डिजाइन का जो साइज है, इस डिजाइन का साइज हो गया सर ये 200। कहाँ जाके आया था, रिसाइज कहाँ आया था ये? ये जब रिसाइज एंड मैजिक स्विच पे जाएंगे ना मैम, रिसाइज एंड मैजिक स्विच दिख रहा है ऊपर ये। ओके ओके, ये इनबिल्ट ही है यहाँ पे ना? हाँ इनबिल्ट है, ठीक है, ये जो दिख रहा है ना इस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कस्टम साइज पे जाएंगे, और कस्टम साइज पे ये कर देगा, आपको बता देगा। लेकिन अब इसमें देखिए फॉर एग्जांपल जैसे भी जितने भी यहाँ पर जो पोस्टर है ना, जितने भी पोस्टर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा कि मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का कोई पोस्टर बनाना है, जैसे कि वेबिनार के बारे में या सेमिनार के बारे में बता रहा है, तो ये आपको क्या कर देगा, जो ये आप इसका प्रिंट लग कहेंगे ना, इसका प्रिंट कहेंगे ना, तो ये प्रिंट का जो साइज होगा एक्यूरेट साइज हो। ठीक है ना, एक्यूरेट साइज क्या होगा, जो आप जितना साइज चाहते हैं उस साइज में ये प्रिंट होगा, और इसकी पिक्सल्स बिल्कुल भी नहीं फटेंगी। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं फटेंगी, कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो क्या नाम है, जो कैनवा है, कैनवा प्रिंट का भी प्रोवाइड करता है कि प्रिंट करा देता है, लेकिन प्रिंट कराने के लिए आपको क्या होता है, प्रिंट कराने के लिए इसमें क्या करता है, ये पैसे ज्यादा लेता है आप। ठीक है ना, पैसे ज्यादा लेता है। तो ये क्या कर सकते हैं आप, यू कैन क्रिएट, और जो ये यहाँ पर पोस्टर्स हैं, उन पोस्टर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर
यहाँ पर चेंज कर सकती हैं, यहाँ चेंज कर सकती हैं, यहाँ चेंज कर सकती हैं, यहाँ चेंज, जैसा भी चाहे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कुछ और कर सकती हैं, यहाँ कुछ और डाल सकती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ और, जो भी जिस हिसाब से अगर आप चाहे बता दोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए कि ठीक है इसका मुझे कलर चेंज करना है, तो आप इसको कलर चेंज कर सकती हैं, जो भी कलर आप चाहे चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको ये वाला कलर चाहिए, ये कलर चाहिए, यहाँ से ये कलर चाहिए, ठीक है ना, यहाँ से ये कलर चाहिए, जो भी कलर आपको चाहिए वो आपका ये कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आज, सारी चीजें तो नहीं हो सकता, लेकिन ये सारी धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। तो अभी तो बेसिकली हमने डिजाइनिंग के बारे में सीखा, किस तरह से डिजाइन होती है, किस तरह से जस्ट करते क्वेश्चन है, हैं। मतलब क्वेश्चन है, मतलब आप बाद में भी मुझे हमें पढ़ा सकते हैं। मैं बस फॉर जानने के लिए बोलूँ, क्या जो स्कैन कोड वगैरह क्रिएट कर सकते हैं इसमें, अगर जी जी किसी जी। रजिस्ट्रेशन के लिए देना है तो? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई, आपने गूगल फॉर्म का लिंक किया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वाला गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म का हमने किसी भी चीज का डॉक्यूमेंट का स्कैन करना है आपको, या आपकी वेबसाइट का, आपने यहाँ से मतलब आपका जो भी क्या नाम है इसका, लिंक है ना, लिंक को आपने यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद क्या किया, कॉपी करने के बाद हमारे पास कहाँ गया वो, सर तो जो हमारा गूगल फॉर्म है वो फिर स्कैन बन जाएगा, कोड बन जाएगा? ये अभी मैं बता रहा हूँ आपको। कोई सा भी चीज आपने लेने, फॉर एग्जाम्पल आपको आपको इसी पे ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पर ना एक 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 या ऐप पे जब जाएंगे ना, ऐप पे जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स तो दी दी, इसके अलावा दी ना बहुत सारी, ये जो मोर फ्रॉम कैनवा जो देख रहे हैं ना अब, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसमें चार्ट है, फोटो है, क्रिएट है, बैकग्राउंड है, और ये है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास QR कोड स्कैनर भी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ओपन किया, ओपन करने के बाद हमने यहाँ पर इसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद ये जनरेट किया। अच्छा, जब जनरेट हो गया ना, ये जनरेट हो गया। अब अब इसको आप कितना भी साइज कर लें, ठीक है ना, कितना भी साइज कर लें, और कितना भी साइज करने के बाद इसके आप सर, इसको भी कर सकते सर हैं। आप ये वापस एक बार दिखा सकते हो, आज या फिर कल भी चलेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल मैम, आज ही सीख लो, कल तो क्या है। एक बार देखिए, वापस दिखा सकते हो? एक हमें वापस क्या करना है, हमें यहाँ पर ना, देखो ये दिख रहा है ना, जैसे ऐप है, जैसे फॉर एग्जांपल जब कोई फर्स्ट टाइम आप कैनवा करेंगे ना, तो ये वाले जो फीचर्स है ना ऐप में होगा, ऐप में जाके आपको करना है। यहाँ पर जितने ये ना मोर फ्रॉम कैनवा, यहाँ पर बहुत सारे ब्लैक ब्लैक में चार्ट है, फोटो है, कैनवा, ये सारी चीज इधर रखी है, ठीक है। इसके नीचे आपको पॉपुलर है, पॉपुलर में आपको इमेज अपसेटर, कस्टमाइजर, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें दे रखी है। तो यहाँ पर एक चीज होगी, देखो ना, ये क्या है, QR कोड, QR कोड जनरेटर है ना। तो यहाँ पर QR कोड पर क्लिक करना है, QR कोड पर जब क्लिक करेंगे, और QR कोड के बाद आपने क्या किया, यहाँ पर आपने जो भी आपका लिंक है, वेबसाइट का लिंक है या किसी का लिंक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस पर हम क्या कर लेते हैं, देखिए हम आपको भेज देंगे तो आप वो देखेंगे। जैसे ही अपडेट हो जाएगा फिर हम उसे बस अपना कॉपी पेस्ट करके पोस्टर पे पेस्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जस्ट एक मिनट, सर ठीक है। URL के बगैर कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकता है क्या? इसमें सिर्फ URL ही होगा? नहीं नहीं, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से अपने हमारी जो वेबसाइट है, हमने वेबसाइट का QR कोड किया, तो ये हमारी वेबसाइट का QR कोड ही हो जाएगा। तो आप इसको स्कैन कीजिएगा, ठीक है, स्कैन करके देखिएगा, आपको देखिए आपके फोन से स्कैन करिए क्या खुल के आ रहा है। इसको अपने फोन से स्कैन कीजिए, देखिए आपको पता चल जाएगा क्या खुल के आ रहा है। क्या स्कैन किया आप लोगों ने? वेबसाइट आ रहा है ना? वेबसाइट आ रहा है ना। तो हमने यहाँ कौन सी क्या डाला है ना, वेबसाइट भारत डिजिटल एकेडमी डाला है, ठीक है ना। अब लेकिन आप ये क्या क्या कह रही थी मैम, क्या 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 है? मतलब जैसे कोई स्कैन कर, जो अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है या फिर कुछ और, पेस्ट कैसे करेंगे? वो इन्फॉर्मेशन कैसे देंगे? मतलब जैसे इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल बताइए, फिर मैं आपको बताऊँ। सपोज हम लोग ये स्कैन करके, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये स्कैन करने से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा,
हाँ, तो तो अब रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म ओपन होगा, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का कुछ टेक्स्ट तो होगा जिसपे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगी। उसको अगर गूगल फॉर्म में क्रिएट करेंगे तो उसका यूआरएल यहाँ दे देंगे, है देखिए ना सर? देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे गूगल फॉर्म है, गूगल जी फॉर्म जी में ये सर। रजिस्ट्रेशन जो रजिस्ट्रेशन किया, हम गूगल फॉर्म में जाएंगे तो गूगल फॉर्म का जो हमने यूआरएल है यहाँ से कॉपी किया। यूआरएल कॉपी करने के बाद हमने क्या किया, हम लोग इस पे गए और इस पे जाने के बाद अभी तो हमने किया था भारत डिजिटल एकेडमी का वेबसाइट खुल रहा है। अभी अब यहाँ से जब हमने क्या कर देंगे, कंट्रोल V। ना एक्चुअली सर मैं कह रही हूँ बियॉन्ड एकेडमिक पर्पज, सपोज जैसे होता है ना, सपोज आप किसी आईआरसीटीसी का स्कैन कोड किए तो उसके अंदर एक इंफॉर्मेशन होता है, पीएनआर क्या है, क्या क्या जो तो भी हो, तो इसमें उस तरह का डेटा दिया जा सकता है, बनाया जा सकता है इसमें। बिल्कुल इंफॉर्मेशन इसलिए उसमें ऐसा होता है क्योंकि वो, देखिए इंफॉर्मेशन उसमें इसलिए ऐसा होता है क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने कहा, आपने कोई टैक्स डाल दिया ऐसे यहाँ पर, जैसे हमने गूगल फॉर्म डाला, तो जब आईआरसीटी जो है, देखिए फॉर एग्जांपल आपने कहा कि ये आईआरसीटी का कोई भी आपने, ये यहाँ से आपने कोई भी, मतलब आपने कोई भी लॉगिन किया, आपने ये वाला यूआरएल खोला, ठीक है, यूआरएल खोला और आपने क्रिएट किया, यहाँ पर क्रिएट किया, उससे कहा कि आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, तो आप ये क्या कर दीजिए यहाँ से जनरेट कोड। तो ये जो जनरेट कोड हुआ है, अच्छा आप अब स्कैन करके देखिए भाई, कोई आप वो रिसोर्सेज तो खोलेंगे, उसमें कोई ऐसे टैग तो डाल देंगे होम टॉम क्या क्या, वो कैसा खोलेगा फिर? आप स्कैन कीजिए, आप समझ आ जाएगा कि जो हमने इसका कोड जनरेट किया है, यस इस सर, आईआरसीटीसी का खुल रहा है। है ये। तो वो ये क्या करते हैं आईआरसीटी वाले, जब आपका जनरेट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका लिंक आ जाता है, तो लिंक आता है तभी तो हम उसको स्कैन कर सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई पेमेंट मंगाना है, आपको कोई किसी से, आपका फोन पे का कोई अकाउंट है या कोई बैंक अकाउंट है, आपको पेमेंट मंगाना है किसी से, तो आप अपने उस पेमेंट का लिंक डाल दीजिए, पेमेंट का लिंक आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। फोन पे और किसी का भी फोन फोन का जब लिंक डालेंगे तो वो क्यूआर कोड बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है इसमें, तो समझ आ गया ना आपको ये सिस्टम क्या होता है, ठीक है। जी सर, जी सर, जी। हाँ सर जैसे क्यूआर कोड आ गया, बस इसको हम वो क्रॉप करके अपना पेस्ट कर लें पोस्टर पे, जैसे हमें कहीं प्रिंट निकालना है तो। हाँ, मतलब जहाँ भी, जैसे कि किसी भी पोस्टर पे आप जो इसको जितना भी छोटा कर सकते हैं, जितना भी बड़ा कर सकते हैं, देयर इज अ नो मैटर, मतलब ठीक है ना। कहीं सेव वगैरह का ऑप्शन नहीं है? सेव हाँ डाउनलोड होता है मैम, ये देखिए, ये है ना, ये जैसे आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको यूँ कर सकते हैं, है ना, इसको कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यू कैन, इसका जो साइज है ना, इसका जो साइज, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो साइज है ना, इसको हम लोग जैसे कि ये जो स्क्वायर साइज में, हम लोग इसको स्क्वायर साइज में ले लेंगे इसको, ठीक है ना। इसको इस तरह से ले सकते हैं, जो ये एक्स्ट्रा आ रहा है ना, आप अपनी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई भी स्कैन ईयर और ये वो सारी चीज। आप किसी को ऐसे क्यूआर कोड तो नहीं भेजेंगे, इसको प्रिंट तो कराना पड़ेगा ना आपको कोई। और इसके अलावा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप इस वाले क्यूआर कोड को आपको करना है कि इसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कौन सा आता है वो, आपने सोशल मीडिया वाला जो है ना, जैसे हम लोग ऐसा करते हैं, देखिए ये मैं उस वाले अकाउंट में काम कर रहा हूँ जो हमने बनाया था ना, जो फ्री वाला अकाउंट है ना, ठीक है ना। सोशल मीडिया वाला क्या है, सोशल मीडिया क्या है, हमने यहाँ पर फेसबुक पोस्ट है। और फेसबुक पोस्ट क्या है ना, स्क्वायर में है ये, है ना। तो स्क्वायर में जब हम करेंगे तो स्क्वायर में क्या कर देगा, स्क्वायर में ये पूरा तरीके से स्क्वायर में ये फेसबुक पेज नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इसका मतलब यहाँ से साइज ले लें। और जैसे कि हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने चाहा तो हम इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर,
और डाउनलोड करने के बाद पीएनजी में डाउनलोड करना है, ठीक है। आपको साइज क्या कितना करना है, पीएनजी में डाउनलोड करना है। पीएनजी में डाउनलोड करने के बाद में आपको ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए मैंने आपके उस पर ग्रुप पे सेंड कर दिया। ठीक है ना, तो ये इस तरह का आपका ये क्या होगा, एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। और ये इस क्यूआर कोड का आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस क्यूआर कोड का, ठीक है मैम, समझ में आया। थैंक यू सर। हाँ, जी सर, जी सर, थैंक यू सर। और कुछ और कुछ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है मैम। तो आप कल के लिए थोड़ा बहुत छोड़ दें। जी सर, थैंक यू सर। जी सर, कल कल करते हैं, आज बहुत ज्यादा हो गया इंफॉर्मेशन और है सर। ना, तो आप जरूर देखिए, वो हमारे रिव्यू को जरूर अपना कर दीजिएगा, है ना। और जो कर दिया है सर, कर दिया है। हाँ। यूट्यूब चैनल है वो भी कर दीजिएगा, जिससे कि हम थोड़ा सा और उसको अपना कर सके, ठीक है। कल ऐसा करते हैं, अगर 7:30 पे क्लास करें कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सर, से, फ्रॉम माय साइड। है कोई 7। दिक्कत नहीं है सर फ्रॉम माय साइड। हाँ, कल हम लोग 7:30 का लिंक भेजेंगे, 7:30 पे वी विल कंडक्ट द क्लास, ठीक है ना। तो कल एक नए टॉपिक के बारे में क्योंकि आज तो हमने बेसिकली सिर्फ कैनवा का बेसिक सीखा कि कैनवा क्या है, कैसे चलता है। कल हम और सही से सीखेंगे किस तरह से रिसर्च में ये हमारे काम आता है ना, ठीक है मैम। ओके, थैंक यू वेरी थैंक मच यू सो अभी। मच सर। थैंक यू सर। तो आप जी जरा सर, थोड़ा नाइस सेशन सर। कैमरा ओपन करना मैम, थोड़ा सा आज हम लोग स्क्रीन शॉट ले लेते हैं, जी। और कौन कौन है, ओपन और कैमरा, समीता, अब सब लोग चले गए। चलो कल स्क्रीन शॉट लेते हैं, आज से मेरे ख्याल से कौन है, ईदंत है, ये सब चले, कल ले लेते हैं मैम, है समीता, कल ले लेते हैं, है ना? आज चले गए।